Okay, today we are starting with module जो इसका है implement phase को हम कवर करना चाह रहे हैं और implement phase ये phases वाला जो पोर्शन हमने शुरू किया था ये उसका तीसरा मॉड्यूल है। तो हमने दो phases कंप्लीट कर ली हुई हैं, इनिशिएट फेज कर ली है और प्लान एंड एस्टिमेट फेज कर लिया है। दोनों में एक में 5 प्रोसेस थे, एक में 6 प्रोसेस थे। तो अब हम जो आ गए हैं इसके अंदर इम्प्लीमेंट में हमारे पास टोटल 3 प्रोसेस हैं। ये हैं जनाब, अब देखें ना, आपने ये देखा कि आपने पिछले प्रोसेस में प्लान एंड एस्टीमेट में उन 5 प्रोसेसेस के अंदर वो सब कुछ कर लिया था 6 प्रोसेस में कि जी पहले आप ये किया, फिर वो किया, उधर से निकला, उधर गया, टास्क बने, सारा कुछ हुआ। नाउ यू आर ऑल सेट टू डू द इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज कंपैरेटिवली वेरी सिंपल जॉब। नाउ आपने करना क्या है? नंबर 1, आपने काम करना है, जैसे आपने टास्क बनाए हैं और उससे डिलीवरेबल क्रिएट होगा। ठीक है, एक बात। इसके अलावा रोजाना आपने डेली स्टैंड अप मीटिंग करनी है। दूसरा प्रोसेस ये हो गया। और तीसरा प्रोसेस जब ये आपका खत्म हो जाएगा स्प्रिंट, तो आपने ग्रूम प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग करना है। मतलब जो प्रोडक्ट बैकलॉग पड़ा हुआ है उसमें जाएंगे और उसको ग्रूम करेंगे। ग्रूम का मतलब वही है जैसे आप फूलों को क्यारी में काटते हैं, फालतू पत्ते काटते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रूमिंग, ताकि वो बुरा ना लगे। एग्जैक्टली जो प्रायोरिटाइज बैकलॉग है उसके अंदर नया घास फूस उग गई है, नए एपिक्स आ गए हैं, नई यूजर स्टोरीज किसी डाल दी हैं, वो प्रायोरिटाइज नहीं है, तो अब उनको हमने ग्रूम करना है। तो उनको भी उनका ठीक ठाक करके उनको भी बीच में फिट करना है। पहले तो अगर एपिक है तो उसको क्या कहते हैं, स्टोरीज में कन्वर्ट करना है और फिर स्टोरी को प्रायोरिटाइज करके इस प्रायोरिटी के अंदर फिट करना है कि कहाँ पे फिट आता है। तो इसको कहते हैं जी ग्रूम प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग। ये 3 प्रोसेस हैं सिर्फ जो एग्जीक्यूशन से या इम्प्लीमेंटेशन से ताल्लुक रखते हैं। इसकी पहले आप लोग वीडियो देख लें और फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Hello, and welcome to this session of Scrum Master Certification course. I hope you're looking forward to learning a new concept through a fun activity. Today we'll watch a Scrum team perform an exercise to gain insight into team velocity and the value of doing things in rapid iteration. Here's what the facilitator has to say to the team. Okay, all right, everybody, we're going to go ahead and start with an exercise. This is a quick little brain passing game that we do to just illustrate the concepts that we've been talking about in Scrum, mainly the value of doing things in rapid iteration. Okay, so you guys are a perfect number for a Scrum team. So pretend you guys are all on the same team, and what we're going to do is just these little brainies. Okay, these are our little stress balls that we use in class. So I've got a bucket of these different brainies, and what I'd like you guys to do as a team is basically go ahead and pass these amongst yourself. Now, there's just a couple rules that I'm going to tell you about. First rule is that each team member must have possession of each of these brainies. And what you're trying to do is figure out how many of these can pass between all of you within 2 minutes. Okay. Now, again, each person has to have possession of the brain at least once in the progression before it goes back in the bucket to become as complete. Now, the second rule, you need to pass the brain behind your back, okay, to the next person. All right, make sense? So, first thing I'm going to do is give you guys 30 seconds to plan how you're going to do it and come up with an estimate for how many of these things you think as a team you can pass in 2 minutes. Okay, 30 seconds starts now. The team quickly begins to plan a way to perform the task. It looks like some serious strategy planning is going on. Time is up. I'm going to put 2 minutes on the clock. You guys figure out how you can do this, okay? All right, so 2 minutes. Ready? 2 minutes. Oh, how many did you guys do? You can do 60. Okay, yes, go ahead. Time starts now. The target is 60 brains in 2 minutes.
team begins passing the brains. The last member in line counts the number of brains that make it to the container. Each team member is busy passing the brains. It seems that their arms are getting tired of the backward passing. 10 more seconds to go. The team is working hard. 5, 4, 3, 2, 1, and time's up. Okay, so now that we've done this little exercise here, what did you guys think about it? Did you learn anything in terms of the ability to pass these little brains around that you didn't anticipate? You're off more than you Okay. Also, participants felt they had underestimated their passing capability. The target was 60 and the team achieved 73. The facilitator explains that this was a case of underestimating and overachieving. So the team is asked to play another round of brain passing to see if things can be done better. And if the estimation is more towards being accurate this time. At the end of the next round, here's what the team had to say. Yes, we did 80, and then we did 79. Right. So it means that it's going to be somewhere between those which will be efficient. So that's good. You notice you're getting closer in terms of estimating what your actual velocity is, right, for the team. Okay, and also it takes into account things that you may not have anticipated earlier, right, like how many you might have dropped and things like that. This activity demonstrates how initial estimates can change after a few iterations. We're going to learn the phase explained after plan and estimate in SCRUM, implementation. To start with, large projects require multiple SCRUM teams to work in sync to ensure project progress. Because the teams work parallel, ensuring that all teams progress uniformity is critical with respect to deadlines. There has to be a communication mechanism to ensure that teams are in sync and any findings from one of the teams related to any part of the project is effectively communicated across teams. So what is implementation all about? The implement phase is related to the execution of the tasks and activities to create a project's product. These activities include creating various tools, conducting daily stand-up meetings, and grooming, which in turn include reviewing, fine-tuning, and updating the product backlog at regular intervals. The SCRUM body of knowledge says that the phase implement can be applied to portfolios, programs, and or projects in any industry. Products, services, or any other results to be delivered to stakeholders, and projects of any size or complexity. We need to throw more light on the review of the implement phase process. Let's understand them one by one. The first process and sequence is create deliverables. In this process, the SCRUM team works on the tasks in the sprint backlog to create sprint deliverables. The SCRUM board is often used to track the work and activities being carried out. Issues and problems being faced by the SCRUM team could be updated in an impediment log. Conduct daily stand-up is the second process followed. In this process, every day a highly focused, time-boxed meeting is conducted, referred to as daily stand-up meeting. This is the forum for the SCRUM team to update each other on their progress and any impediments they may be facing. The last process in the implementation phase is groom prioritized product backlog. In this process, the prioritized product backlog is continuously updated and maintained. A prioritized product backlog review meeting may be held in which any changes or updates to the backlog are discussed and incorporated into the prioritized product backlog as appropriate. Now that we have understood there are three processes involved, let's learn them in detail now. We're starting with the process create deliverables. Here, we will be learning about the inputs, tools, and outputs involved in creating the deliverables. The first source of input is none other than the SCRUM core team itself. It
As an input consists of the Scrum team, the Scrum Master, and the product owner. Sprint backlog as an input has the list of the tasks to be executed by the Scrum team in the upcoming sprint. It is common practice that the sprint backlog is represented on a Scrum board or task board, which provides a constantly visible depiction of the status of the user stories in the backlog. Also included in the sprint backlog are any risks associated with various tasks. Any mitigating activities to address the identified risks would also be included as a sprint backlog. Once the sprint backlog is finalized and committed to by the Scrum team, new user stories should not be added. However, tasks that might have been missed or overlooked by the committed user requirements arise during a sprint, it will be added to the overall prioritized product backlog and included in a future sprint. Scrum board is the next input. Scrum's transparency comes from openly viewable information tools like the Scrum board, which shows the progress of the team. The team uses the Scrum board to plan and track progress during each sprint. As you can see in the diagram given, the Scrum board contains 4 columns to indicate the progress of the estimated task for the sprint. A to-do column for tasks not yet started, an in-progress column for tasks started but not yet completed, a testing column for tasks completed but in the process of being tested, and a done column for the tasks that have been completed and successfully tested. At the beginning of a sprint, all tasks for that sprint are placed in the to-do column and are subsequently moved forward according to their progress. Furthermore, the Scrum board should preferably be maintained manually on paper or a whiteboard, but can also be maintained electronically in a spreadsheet. The Scrum team should change or add to the Scrum board as required, so that the Scrum board provides visual information and control about the work going on as agreed and committed by the team. Any impediment is any hindrance or hurdle that reduces the productivity of the Scrum team. Impediment must be identified, resolved, and removed if the team is to continue working effectively. Impediments can be internal to the team, such as inefficient workflow or lack of communication. They can be external. Examples of external impediments might include software loss issues or unnecessary documentation requirements. The Scrum framework, with its inherent transparency, facilitates the swift and easy identification of impediments. Failure to identify or deal with impediments can be very costly. Impediments should be formally recorded by the Scrum Master in an impediment log and can be discussed during daily stand-up meetings and sprint review meetings as appropriate. Now we're going to talk about the tools involved in this phase. Team expertise is the most sought-after tool in the implement phase. This refers to the collective expertise of the Scrum team members to understand the user stories and tasks in the sprint backlog in order to create a final deliverables. Team expertise is used to assess the inputs needed to execute the planned work of the project. This judgment and expertise are applied to all technical and management aspects of the project during the create deliverables process. Scrum team members have the authority and responsibility to determine the best means for converting the prioritized product backlog items into finished products without requiring involvement of any stakeholders outside the team. Additional expertise is available from the Scrum guidance body as required. We've seen the inputs and tools involved. Let's now see the outputs generated in the last leg of the process. Sprint deliverables is the first output. At the end of each sprint, a product increment or deliverable is completed. The deliverable should possess all features and functionality defined in the user stories included in the sprint and should have been tested successfully. Updated Scrum board is another important output. The Scrum board is
regularly as the team keeps completing tasks. However, at the end of the sprint, the Scrum board will be reset or wiped off, and a new Scrum board is created for the sprint. We saw the significant implementation in Scrum projects. We also talked about the first process employed called Create Deliverables. Today, we're going to discuss the second process being performed as part of the implementation phase, Conduct Daily Stand-Up. But before that, let me give you a brief idea as to what the Daily Stand-Up means. Conduct Daily Stand-Up is a process which is a highly focused, time-boxed meeting. It's conducted every day. This meeting is referred to as a daily stand-up meeting, which is a forum for the Scrum team to update each other on their progress and any impediments they may be facing. There are a lot of inputs, tools, and outputs involved in this process. Why don't we look at them one by one? So the first input being used in this process is the Scrum team. The Scrum team, sometimes referred to as the development team, is a group or team of people who are responsible for understanding the business requirements specified by the product owner, estimating user stories, and final creation of the project deliverables. Scrum teams are cross-functional and self-organizing. The team decides the amount of work to commit to in the sprint and determines the best way to perform the work. The Scrum team consists of cross-functional team members who carry out all the work involved in creating and shipping deliverables, including development, testing, quality assurance, etc. Identifying the Scrum team is the responsibility of the product owner, often in consultation with the Scrum Master. Next is the Scrum Master. A Scrum Master is a facilitator and servant leader who ensures the Scrum team is provided with an environment conducive to completing the project successfully. The Scrum Master guides, facilitates, and teaches Scrum practices to everyone involved in the project, clears impediments for the team, and ensures that Scrum processes are being followed. It is the responsibility of the product owner to identify the Scrum Master for a Scrum project. Next, the Sprint Burndown Chart. The Sprint Burndown Chart is a graph that depicts the amount of work remaining in the ongoing sprint. The initial Sprint Burndown Chart is accompanied by a planned burndown. The Sprint Burndown Chart should be updated at the end of each day as work is completed. This chart shows the progress that has been made by the Scrum team, and it also allows for the detection of estimates that may have been incorrect. If the Sprint Burndown Chart shows that the Scrum team is on track to finish the task in the sprint, the Scrum Master should identify any obstacles or impediments to successful completion and try to remove them. A related chart is a Sprint Burn chart. Unlike the Sprint Burn Down chart, which shows the amount of work remaining, the Sprint Burn Up chart depicts the work completed as part of the sprint. The impediment log is another source for input. An impediment is any hindrance or hurdle that reduces the productivity of the Scrum team. Impediments must be identified, resolved, and removed if the team is to continue working effectively. Impediments can be internal to the team, such as inefficient workflow or lack of communication, or they can be external. Examples of external impediments might include software license issues or unnecessary documentation requirements. The Scrum framework, with its inherent transparency, facilitates swift and easy identification of impediments. Failure to identify or deal with impediments can be very costly. Impediments should be formally recorded by the Scrum Master in an impediment log and can be discussed during daily stand-up meetings and sprint review meetings as appropriate. So to make it happen, we certainly need some tools, and the tools in action are as follows. The daily stand-up meeting is the first tool we're going to start with. The daily stand-up meeting is a short daily meeting, time box of 15 minutes. Team members assemble to report their progress in the sprint and plan the day's activities. The meeting duration is very short, and all members of the Scrum team are
to attend. However, the meeting is not canceled or delayed if one or more members are not able to attend. Discussions between the Scrum Master and the team or between some Scrum team members are encouraged. Discussions happen after the meeting to ensure that the daily stand-up meeting is short. 3 daily questions is the next use. In the daily stand-up meeting facilitated by the Scrum Master, each Scrum team member provides information in the form of answers to 3 specific questions. The questions are as follows. What did I complete yesterday? What will I complete today? What impediments or obstacles, if any, am I currently facing? By focusing on these 3 questions, the entire team can have a clear understanding of the work status. Occasionally, other items may be discussed, but this is kept to a minimum in light of the time-boxed nature of the meeting. Now that we've seen the inputs and tools used in the process of conducting daily stand-up meeting, it is time to check outputs. The first output we're going to discuss is the updated sprint burndown chart. The sprint burndown chart is a graph that depicts the amount of work remaining in the ongoing sprint. The initial sprint burndown chart is accompanied by planned burndown. The sprint burndown chart should be updated at the end of each day as work is completed. This chart shows the progress that has been made by the Scrum team and also allows for the detection of estimates that may have been incorrect. If the sprint burndown chart shows that the Scrum team is not on track to finish the task in the sprint on time, the Scrum Master should identify any obstacles or impediments to successful completion and try to remove them. A related chart is a sprint burn-up chart. Unlike the sprint burn-down chart, which shows the amount of work remaining, the sprint burn chart depicts the work completed as part of the next sprint. Next output is the updated impediment log. An impediment is any hindrance or hurdle that reduces the productivity of the Scrum team. Impediments must be identified, resolved, and removed if the team is to continue working effectively. Impediments can be internal to the team, such as inefficient workflow or lack of communication, or they could be external. Examples of external impediments might include software license issues or unnecessary documentation requirements. The Scrum framework, with its inherent transparency, facilitates the swift and easy identification of impediments. Failure to identify or deal with impediments can be very costly. Impediments should be formally recorded by the Scrum Master in an impediment log and can be discussed during daily stand-up meetings and sprint review meetings as appropriate. We're going to discuss a third process called Room Prioritized Product Backlog. Let's first see the inputs involved. Scrum Core Team is the first source of input. Prioritized Product Backlog is the next source of input. The product owner develops a prioritized product backlog that contains a prioritized list of business and project requirements written in the form of epics, which are credible user stories. The prioritized product backlog is based on 3 primary factors: value, risk or uncertainty, and dependencies. It is also referred to as the risk-adjusted product backlog, since it includes identified and assessed risks related to the project. It also encompasses all approved changes that can be prioritized in the prioritized product backlog. Let's now look at primary factors influencing the prioritized product backlog, one by one. Let's talk about value first. It's the product owner's responsibility to ensure that the user stories provide the highest business value are prioritized
गड़बड़ हो गई है, नेट ठीक हो जाए तो दोबारा इसको ऑन करता हूँ। Scrum team to deliver maximal business value from early in the project and continue throughout. Risk or uncertainty is another important factor because the more uncertainty that exists, the riskier your project is. It's important that risks associated with high-value user stories and the prioritized product are given higher priority. User stories carrying higher risk will also require risk mitigation actions. When these risk mitigation actions are prioritized against the backlog, the result is a risk-adjusted product backlog. Dealing with risks early in the project doesn't guarantee that the project will be successful, but it does enhance the team's ability to deal with risk. Next factor is dependencies. It is usually not possible to create a prioritized product backlog in which there are no dependencies between user stories. Functional requirements often depend on other functional and even non-functional requirements. These dependencies can impact how the user stories in the prioritized product backlog are prioritized. Two of the most common ways to resolve dependencies are to either split a single story into multiple parts or combine interdependent stories. Another important factor is estimates. High-level estimates or epics are also available in the prioritized product backlog. Now, what are the tools employed to carry out this process? First of all, we have prioritized product backlog review meetings as the tool. The intent of the prioritized product backlog review meetings is to ensure that user stories and acceptance criteria are understood and are written properly by the product owner so that they reflect the actual stakeholder or customer requirements and priorities. User stories are understood by everyone in the Scrum team. And that high priority user stories are well refined so that the Scrum team can properly estimate and commit to such user stories. The prioritized product backlog review meetings also ensure that irrelevant user stories are removed. Any approved change requests or identified risks are incorporated into the prioritized product backlog. Now that we have seen a list of inputs and tools being used, it is time to see the outputs created. Updated prioritized product backlog is the output generated. As we've already discussed it under tools, I'm going to skip ahead with the impression that you've understood it well. So, prioritized product backlog may be updated with new stories, new change requests, new identified risks, updated user stories, or reprioritization of existing user stories. Thank you for watching this video of Scrum Master Certification course. जी जनाब, कुछ अफाका हुआ? इम्प्लीमेंट फेज के अंदर हमने 3 प्रोसेसेस को देखा और बड़ी सिंपल प्रोसेस हैं और आप अक्सर चीजें तो वही हैं जो हम पहले जानते हैं और आप देख चुके हैं और बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन कुछ चीजें साथ साथ हम लर्न भी करते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो इसने शुरू में एक एक्सरसाइज करवाई, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लानिंग में भी ये चीज काम आती है और इम्प्लीमेंटेशन में भी काम आती है। देखिए, बात ये है कि मैंने एक बात आपसे कही थी कि हम काफी गेस वर्क करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज के बारे में एग्जैक्ट डाटा ना अवेलेबल हो तो उस गेस वर्क को रिफाइन किया जा सकता है। जैसे इसने इनसे पूछा कि भाई आपका क्या ख्याल है, आप कितनी बॉलें ट्रांसफर कर सकते हैं इस पीरियड के अंदर, तो उन्होंने कहा 60 बॉल्स हम कर लेंगे और 2 मिनट का टाइम था, मतलब 2 सेकंड पर बॉल, राइट, फाइन। और ये जो उन्होंने फैसला किया, ये टीम की ब्रीफ मीटिंग, उसने चंद सेकंड दिए थे
कि जल्दी से आप लोग आपस में बात करके ये बताएं और ये भी देख लें कि आपने अपनी स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। फिर उन लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई, उसके मुताबिक उन्होंने उसको परफॉर्म किया, तो पता चला कि वो तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, वो तो इससे ज्यादा काम कर सकते थे। इसका मतलब है कि टीम जो वेलोसिटी एक्सपेक्ट कर रही थी, कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है ना, शुरू में नई टीम है, तो उनको नहीं पता था कि हम कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, तो उन्होंने बहुत मुहतात अंदाजे के मुताबिक एक फिगर दिया। लेकिन अब जब काम हुआ तो पता चला कि ओहो, ये तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं, अब हमने ऑप्टिमम की तरफ जाना है। तो फर्ज करें कि अब ये लोग कहते हैं कि 73 हमने किया था, लेकिन हम तो इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, हम 90 का टारगेट रखते हैं। और फिर वो उसको स्ट्रेटेजाइज करते हैं। हो सकता है अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी तब्दील करें, खड़े होने की प्लेसिंग को या कोई और तरीकाकार करें, और अल्टीमेटली पता ये चलता है कि वो 90 से भी ज्यादा कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी इंप्रूव होने की वजह से भी मजीद परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, और अल्टीमेटली यू विल हैव अ फेयरली गुड आइडिया ऑफ योर टीम वेलोसिटी, कि आप इस टीम में किस हद तक, किस तरह, कितनी स्पीड से काम कर सकते हैं। सो दिस एक्सरसाइज वाज वेरी यूजफुल। छोटी सी एक्सरसाइज है, मामूली सी है। असल में स्क्रम के सारे टूल इसी तरह ही हैं, आसान आसान से टूल हैं, आम जिंदगी के टूल हैं। सिंपली आप इनको अपने आम काम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जनाब, मैंने जब मैं क्लास कराता हूँ तो मैंने फिजिकली अपने पास भी बॉल्स रखी हुई हैं, और मैं ये एक्सरसाइज कराता हूँ। मैंने लास्ट टाइम पीटीसीएल एकेडमी में हमने कराई थी, और वो हमने जो बाहर उनका ग्राउंड बना हुआ है, ग्रीनरी है, जो लॉन बना हुआ है, उसके अंदर जाके हमने किया था, एंड दैट वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये चीजें हमें, टीम जो काम कर रही होती है उसको ये इस तरीके के साथ करना पड़ता है। तो ये हमने देखा। आगे चलते हैं जी। ओके, तो पहले राउंड में उन्होंने कहा जी हम 60 करेंगे, 73 हो गए। दूसरे राउंड में उन्होंने कहा 80 करेंगे, 79 हो गए। तो मतलब उनको फेयरली गुड अंदाजा हो गया। अब था तो अंदाजा ही ना, लेकिन आप देख रहे हैं कि अंदाजा कितना हकीकत के करीब आता जा रहा है। बस यही किस्म का एस्टिमेट हमें चाहिए, हमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वाला एस्टिमेट नहीं चाहिए। काम तेज होते ही ऐसे हैं, एजाइल का मतलब ही ये है। उसके बाद जनाब, जो इस प्रोसेस के अंदर हम कर रहे हैं, इंप्लीमेंट फेज के अंदर, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर तो बड़ा प्रोजेक्ट है, ज्यादा, तो हो सकता है एक से ज्यादा टीमें काम कर रही हों। अगर एक से ज्यादा टीमें काम कर रही होंगी, आपस में सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन भी करानी होगी। आपस की कोऑर्डिनेशन स्क्रम मास्टर तो नहीं कर सकता, तो फिर स्क्रम मास्टर के ऊपर एक होता है स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर, वो उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन कराता है। क्योंकि टीमें पैरेलल में काम कर रही होती है ना, तो कोई एक 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 स्क्रम से कोई चीज दूसरे स्क्रम में जा रही है, या कोई रिसोर्सेज इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर आ रहे हैं। कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जो है, अगर इस तरह हो रहा है, टू इंश्योर दैट टीम्स आर इन सिंक, एक से ज्यादा टीमें हैं तो वो सारी सिंक्रोनाइजेशन में काम करें, कहीं ऐसा ना हो कि आउट ऑफ ऑर्डर चले जाएं। Any findings from one of the teams related to any part of the project is effectively communicated across the teams, बस दूसरी टीमों को भी पता चले। और ये काम जो है, इसको इंश्योर करने का, ये स्क्रम ऑफ स्क्रम मास्टर्स का है। तो इम्प्लीमेंटेशन है क्या जी? इम्प्लीमेंटेशन है इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क एंड एक्टिविटीज टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट प्रोडक्ट। हमने जो चीज बनानी है, जो हमने जिसके लिए प्लान किया हुआ है, अब वो काम हमने करके दिखाना है। तो इसमें हम डिलीवरेबल्स कंडक्ट करेंगे, डिलीवर करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे। दूसरा, हम डेली स्क्रम मीटिंग करेंगे, जिसके अंदर, स्टैंड अप मीटिंग के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आज हमने क्या करना था, क्या किया है। तो वही जिस तरह से इन लोगों ने ये जो बॉल वाली एक्सरसाइज की, उसके अंदर जब उन्होंने एक राउंड लगाने के बाद दोबारा मीटिंग की, तो उन्हें पता चला कि हम कल अपनी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या अगले अटेम्प्ट में हाउ कैन वी फर्दर इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस। और जो उनको उस तरह काम करने में जो इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं, वो उन्होंने स्क्रम मास्टर को बता दिया कि भाई ये मसाइल हल कर दो हमारे, तो हम ये कर सकते हैं।
मिसाल के तौर पे अगर यही बॉल वाली एक्सरसाइज होती तो हम कहते कि यार अगर ये ध्यान में टेबल इतना बड़ा ना होता, छोटा होता, तो शायद हमारी स्पीड और बढ़ जाती, या टेबल होता ही ना तो और बढ़ जाती। तो इस तरीके के साथ अपने आप रीस्ट्रेटेजाइज करते हैं। तीसरा प्रोसेस जो जैसे हमने देखा वो है ग्रूमिंग का, रिव्यूइंग, फाइन ट्यूनिंग एंड रेगुलरली अपडेटिंग दी प्रोडक्ट बैकलॉग। और ये आपको समझ आ गया होगा जिस तरह ने एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके के साथ ने एक्सप्लेन किया है। मैं उन चीजों को जो डिस्कस करने वाली हैं उनके ऊपर आऊंगा। स्क्रम बॉडी ऑफ नॉलेज सेज दैट द फेज इंप्लीमेंट कैन बी अप्लाइड टू पोर्टफोलियोज, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। मतलब कोई भी लेवल स्केलिंग का हो, बिल्कुल लो छोटी टीम के साथ काम हो रहा है, बड़ी टीम के साथ काम हो रहा है, स्क्रम ऑफ स्क्रम हो रहा है, या प्रोग्राम हो रहा है, या पोर्टफोलियो हो रहा है, हर तरह हम ये वाला काम कर सकते हैं। इंप्लीमेंट एवरीवेयर होगा। वो कहते हैं कि ये आप 10 टीम के चक्कर में ना रहें कि 10 बंदों की टीम है या 8 बंदों की टीम है। तो स्क्रम का जो प्रोजेक्ट होता है वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि 800,000 बंदा काम कर रहा हो उसके अंदर, इतनी सारी टीमें काम कर रही हो, वो ऊपर किसी को रिपोर्ट कर रही हो, ऊपर वाला किसी और को रिपोर्ट कर रहा हो, 2 3 4 लेवल भी हो सकते हैं स्केलिंग के। और इस तरह हो सकता है कि टोटल जो वर्कफोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है वो 800 से भी ज्यादा हो। पहला प्रोसेस आपका क्रिएट डिलीवरेबल का है। स्क्रम टीम वर्क्स ऑन द टास्क। टास्क पे काम करना है ना आपने, क्योंकि यूजर स्टोरीज को आप टास्कों में बांट चुके हैं। अब उन टास्कों पे ऊपर काम करना है, और जो कि आपके स्प्रिंट बैकलॉग में पड़े हुए हैं। तो आपने एक एक टास्क के साथ काम शुरू कर देना है, और टास्क होते जाएंगे, यूजर स्टोरीज पूरी होती जाएंगी, और इस तरह आपका डिलीवरेबल तैयार होता जाएगा। स्क्रम बोर्ड एक चीज है जो उसने आगे दिखाया है। स्क्रम बोर्ड एक बोर्ड है जो आप उसके ऊपर मतलब वो विजिबल होता है, सारी टीम देख सकती है। ना सिर्फ टीम देख सकती है, बल्कि जो बाहर से विजिटर आ रहे हैं, कोई स्टेक होल्डर आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ओनर आ रहा है, एनीवन कैन सी व्हाटएवर इज हैपनिंग। सो दिस इज अ करंट पिक्चर एवरी टाइम। तो इसमें वो जो लोग कहते हैं ना जी, ये लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, कम बताएंगे, आराम करेंगे, वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो चीजें चल रही हैं। तो वो चीजें चल रही हैं, वो मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके के साथ। स्क्रम बोर्ड शायद आपको आगे आपने नोट किया हो। स्क्रम बोर्ड इज जस्ट सिंपल बोर्ड जिसके अंदर 3 4 कॉलम बने हुए हैं, और उन कॉलम्स के अंदर हमारे टास्क मूव कर रहे हैं। पहला कॉलम जो होता है वो स्प्रिंट बैकलॉग का होता है। मतलब स्प्रिंट बैकलॉग में अगर से 25 काम है, 25 यूजर स्टोरीज हैं, और हर यूजर स्टोरी के 3 3 4 5 काम होंगे, तो फर्ज करें कि 75 टोटल टास्क हैं। ऑल द 75 टास्क विल बी प्लेस्ड इन दी स्प्रिंट बैकलॉग। मतलब पहले कॉलम में वो सब चिटें लगी होंगी। मतलब एवरी टास्क शुड बी ऑन पोस्टेड नोट के ऊपर आप एक टास्क लिखेंगे, इस तरह वो सारे टास्क उधर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर हम जो जो काम शुरू करेंगे वो आ जाएगा कि ये काम भी हो रहे हैं, मतलब डूइंग। पहला वाला कॉलम था टू डू, दूसरा कॉलम है डूइंग, और तीसरा कॉलम है डन। तो डूइंग जो है वो जो जो काम हो रहे हैं वो उधर नजर आ रहे होंगे, तो हम उधर काम पीछे से पिक करते जाएंगे काम, और इसमें डालते जाएंगे, और ये काम कर करके जो चीजें डन होती जाएंगी उनको डन में डालता जाएगा। उनका फिर आगे जो अप्रूवल होना है, जो भी कार्रवाई होनी है, वो आगे होती रहेगी। कुछ लोग इसको स्क्रम बोर्ड को थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, वो इसके अंदर ही डाल देते हैं कि अच्छा आप ये अप्रूवल के लिए चला गया, अप्रूवल हो गया, नहीं हुआ, वो पूरा एक ही बोर्ड के ऊपर सब कुछ चल रहा होता है। तो पूरी प्रोडक्ट जो है वो एंड तक आपको पता चलता है कि कहाँ पहुंच रही। एनीवेज, तो स्क्रम बोर्ड का भी जिक्र आ गया। इसमें जो इनपुट टूल्स एंड टेक्निक्स और आउटपुट्स हैं, इसके डिलीवरेबल के लिए इनपुट है वो सबसे पहला तो वही जो आपको पता ही है कि स्क्रम कोर टीम है, इसमें ये सब लोग आ जाते हैं। और फिर स्प्रिंट बैकलॉग कहाँ से आया था, आपको याद होगा कि हमने कल जो बात की थी उसमें हमने जो आखिर में चीज वहां से निकाली थी वो एक स्प्रिंट बैकलॉग था, बल्कि ये दूसरे प्रोसेस में निकला था वहां से, और ये हमने कहा था कि ये जा रहा है इम्प्लीमेंट को। सो स्प्रिंट बैकलॉग इज एन आउट इनपुट हैज अ लिस्ट ऑफ टास्क टू बी एग्जीक्यूटेड। वो जो रिफाइंड टास्कों की लिस्ट अपडेट की थी वो अपडेटेड लिस्ट है, और वो हमारे स्प्रिंट बैकलॉग में आ गई है।
or by the Scrum team in the upcoming sprint called the sprint backlog. ये ना वो बना हुआ है आपका स्क्रम बोर्ड बना हुआ है. स्प्रिंट बैकलॉग इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ स्क्रम बोर्ड. ये सारा जो बैकलॉग है ये आपको स्प्रिंट बोर्ड में नजर आएगा और बाकी जो काम हो रहे हैं, मेरा मतलब है कि एक वक्त में आपके ये जो 75 टास्क हैं, 75 टास्क, ये इस बोर्ड में बिखरे हुए होंगे. कोई टू डू में पड़े होंगे, कोई डूइंग में पड़े होंगे, कोई डन में पड़े होंगे. तो इस तरह से 3-4 जितने भी कॉलम बनाए हैं वो सारे काम उधर ही फिर रहे होंगे. ठीक है जी. तो जब सारे काम डन हो जाएंगे या आखिर में आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका काम खत्म हो गया और फिर आप उससे आगे चल सकते हैं. इंक्लूडेड इन द स्प्रिंट बैकलॉग आर एनी रिस्क एसोसिएटेड विद द वेरियस टास्क. और रिस्क के हवाले से हमने कल भी बात की थी कि एक तो रिस्क वो थे ना जो कि बैकलॉग के हिसाब, प्रोडक्ट बैकलॉग के हिसाब से थे. अभी हम स्प्रिंट बैकलॉग की बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो रिस्क होंगे वो टास्क लेवल के रिस्क होंगे. तो उन टास्कों के रिस्कों को हमने यही मिटिगेट करना है और उसके लिए अगर से कि एक चीज को मिटिगेट करने के लिए हमें कुछ और स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो उन स्टेप्स को लेने के लिए भी तो एक्टिविटीज को मजीद टास्क्स को जन्म देना पड़ेगा. सो दोज टास्क विल बी एडेड. दिस कैन बी डन once the sprint backlog is finalized and committed by the Scrum team. New user stories should not be added. ये हमने पहले भी बात की थी कि नई यूजर स्टोरीज आप बीच में नहीं डाली जा सकती. ज्यादा से ज्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो टास्क प्लस माइनस थोड़े बहुत कर सकते हैं और वो भी मतलब जिसे कहते हैं कि बड़े कंट्रोल्ड अंदाज में. ऐसा नहीं होगा टास्क की बहुत ज्यादा आप ऐड कर रहे हैं. पर टास्क लाजमी बात है वो होंगे तो यूजर स्टोरी से रिलेटेड ना किसी यूजर स्टोरी से रिलेटेड होंगे तो वो जायज है क्योंकि यूजर स्टोरी नई ऐड नहीं हो सकती वो लेकिन आप टास्क उसके ऐड कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे आपको पता चला कि यार इस यूजर स्टोरी के अंदर तो रिस्क है तो लाजमी बात है उस रिस्क को बेटर करने के लिए हमें कुछ टास्क ऐड करने पड़ेंगे. या ऐसे कोई टास्क जो मिस आउट हो गए हों या ओवरलुक हो गए हों उनको ऐड किया जा सकता है एक, लेकिन वो कमिटेड यूजर स्टोरी होनी चाहिए. जो यूजर स्टोरी कमिट नहीं हुई उसको आप अभी एंटरटेन नहीं करेंगे. फिर जनाब, इफ न्यू रिक्वायरमेंट्स अराइज ड्यूरिंग अ स्प्रिंट दे विल बी एडेड टू द ओवरऑल प्रायोरिटाइज्ड बैकलॉग. ये मैंने कहा था आपको कल कि भले जो काम हो रहा है इनमें से किसी यूजर स्टोरी को अपडेट करने की रिक्वेस्ट आई हो, लेकिन हमने यहाँ कुछ नहीं करना. यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे जो काम कर रहे हैं, जो कमिट किया है वही करेंगे. लेकिन वो जो नई रिक्वायरमेंट आई है तब्दीली की वो प्रोडक्ट बैकलॉग में जमा हो जाएगी. जब यहाँ से हम काम करके निकलेंगे तो फिर देखेंगे कि अब इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है. देखें इसमें थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा वेस्टेज हो गया टाइम कि वो रिक्वायरमेंट आई हुई थी कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है और हमने तो पुराने तरीके से कर दिया. तो एक आध काम में ऐसा होगा ना, सारी चीजें तो नहीं ऐसे तब्दील होंगी. तो एक आध काम का थोड़ा सा नुकसान अगर ओवर रिसोर्सेज लग गए हैं या कोई थोड़ी बहुत एफर्ट लग गई है, दैट डज नॉट रियली मैटर. बट ओवरऑल अगर आप देखें बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा है. हम एक हाई स्पीड के साथ काम किए जा रहे हैं बगैर रुके हम काम किए जा रहे हैं. तो हमें कोई ये नहीं है कि जी अब वो कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर आ गया है स्प्रिंट में ही रुक गया. ऐसा नहीं होगा. स्प्रिंट चल पड़ा है तो वो 2 हफ्ते में चलेगा और खत्म होगा और अपना रिजल्ट देगा जो कुछ उसमें देगा. स्क्रम बोर्ड स्क्रम ट्रांसपेरेंसी जो है वो इससे बहुत जाहिर होती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंटली विजिबल है फॉर ऑल टू सी. ओपनली व्यूएबल इंफॉर्मेशन टूल है ये which shows the progress of the team all the time. और ये एक ही टूल नहीं है, और भी टूल्स हैं जैसे आपको आगे आगे उसने बर्न डाउन और बर्न अप की भी बात की है. The team uses the Scrum board to plan and track progress during each sprint. इधर वाज़ेह तौर पर नजर आता है हो क्या रहा है, हम कहाँ पहुंचे, कहाँ रुकावट आ रही है, किस काम पे ज्यादा टाइम लग रहा है वगैरह वगैरह. इसके अलावा जो स्क्रम वो जो है बर्न डाउन और बर्न अप चार्ट हैं वो भी हमारे लिए बहुत जबरदस्त हमें फीडबैक देते हैं. 4 कॉलम्स, 3 भी होते हैं कॉलम, 4 भी होते हैं. 4 कॉलम इसने यहाँ सजेस्ट किया. मेरे पास एक और प्लान पड़ा हुआ है जिसके अंदर 5 या 6 कॉलम भी हैं. यू कैन हैव एज मेनी, मगर ये कि आपको फिर देखना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड हो जाती हैं. मगर बुनियादी जो उसकी वो है वो 3 में काम हो जाता है. डूइंग अपना टू डू, डूइंग, डन.
तो अगर 4 कॉलम्स आप रखें टू इंडिकेट द प्रोग्रेस ऑफ एस्टिमेटेड टास्क ऑफ द स्प्रिंट, टू डू हो सकता है, इन प्रोग्रेस जिसको मैं डूइंग कह रहा हूं, और अगर आपने टेस्टिंग अलग से रखना है क्योंकि सॉफ्टवेयर में ज्यादातर टेस्टिंग, तो टेस्टिंग का कॉलम आप बनाते हैं। असल में टेस्टिंग का मतलब होता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की टेस्टिंग। तो उस एक्सेप्टेंस हुई और फिर डन हो गया, तो डन हो गया तो डन क्राइटेरिया मीट हो गया, इसका मतलब है। तो ये जबरदस्त हो गया 4 स्टेप्स के अंदर। तो अगर आप इसके अंदर कैनबैन बोर्ड अलग बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं, कैनबैन को इसके अंदर ही शामिल करना चाहते हैं, तो उसमें जो इन प्रोग्रेस है ये बन जाता है वर्क इन प्रोसेस, WIP। और WIP उसकी फिलॉसफी ये है कि एक वक्त में एक खास नंबर ऑफ टास्क से ज्यादा नहीं किए जा सकते। इसमें तो हम कहते हैं ना जी चलो ठीक है, अब वो काम जो मतलब अवेलेबल है वो काम आगे ट्रांसफर होता रहेगा, वो डूइंग में जाता रहेगा। उसमें वो कहता है कि नहीं, पीछे से काम नहीं भेजना, पीछे से काम नहीं भेजना, जो काम कर रहा है वो बताएगा कि मेरा एक काम हो गया है, अब एक काम भेज दो। ठीक है जी, मतलब वो पीछे से अपनी मर्जी से काम नहीं आएगा, बल्कि इसकी मर्जी से आएगा जो काम कर रहा है। इसको कहते हैं पुल। वो टास्क को खुद पुल करेगा कि हाँ भाई मैंने एक वक्त में 4 काम करने थे, तो 4 काम में से 3 हो गए हैं, एक हो गया है, 3 है मेरे पास इन हैंड, तो अब मेरे पास जगह खाली है, एक और भेज दो। ये पुल कर लेगा एक और जॉब को। एट द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंट ऑल टास्क फॉर दैट स्प्रिंट आर प्लेस्ड इन टू डू कॉलम। शुरू में सारा कुछ टू डू में डाल दिया जाता है, एंड आर सब्सिक्वेंटली मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्रेस। ठीक है नहीं, जैसे जैसे काम होना शुरू होता है, जो काम हो रहा है उसको आप इन प्रोग्रेस में रखते हैं और फिर उधर से आगे की तरफ मूव करते जाते हैं। इसकी और भी बड़ी रिफाइनमेंट्स हैं, और भी बहुत सारी रिफाइनमेंट्स होती हैं। इसमें हम एक तो सीधे सीधे कॉलम्स बना दें, और एक इसमें ये 1 2 3 4 बनाया हुआ है, इसके पाथ, डिफरेंट पाथ भी बनाए जा सकते हैं। ये जैसे इसने यहाँ पे किया हुआ है, इसने क्या किया हुआ है जी, यूजर स्टोरी 1 2 3 4, फिर यूजर स्टोरी 1 के टास्क चल रहे हैं वो ऊपर, 2 के टास्क चल रहे हैं ये, तो तीनों चारों के टास्कों को अलग अलग कर दिया। हम ये भी कर सकते हैं कि हम चारों यूजर स्टोरीज को अलग कलर के पोस्ट-इट नोट से चला दें, उससे भी पता चलता रहेगा ये कौन सी वाली यूजर स्टोरी का टास्क चल रहा है। मगर ये ज्यादा अच्छा तरीका है। स्क्रम बोर्ड शुड जी 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 सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। यूजर स्टोरी से याद आया, इसमें कोई फॉर्मेट हमें कोई मिल सकता है, कोई एग्जांपल के तौर पे, इसको हम लोग जस्ट केस स्टडी के तौर पे देख सकें फर्दर उसको यूजर स्टोरी को बनाने के लिए? बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा। मैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाता हूँ, फॉर्मेट भी आपको देता हूँ, वो बिल्कुल कोई मसला नहीं है। लेकिन एक दफा समझ आ जाए ना कि लॉजिक क्या है, तो फिर हम उन फॉर्मेट्स के ऊपर, फॉर्मेट्स का ये होता है कि कस्टमाइजेबल फॉर्मेट्स होते हैं। एक सिनेरियो में हम थोड़ा और तरह का डायग्राम बना लेते हैं, दूसरे में और तरह का बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्क्रम बोर्ड 3 कॉलम वाला भी है, 4 कॉलम वाला भी, 5 6 7 कॉलम वाला भी है, और इसी तरह अलग अलग यूजर स्टोरी करनी है या मिक्स करनी है वो भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे भी लोग करते हैं कि वो टास्क नहीं बनाते, वो यूजर स्टोरी ही चला रहे होते हैं। और बेहतर तरीका ये है कि टास्क के हिसाब से बनाई जाए ताकि वो पूरी प्रोग्रेस पता चले, आपको स्प्रेड पता चलेगा। अगर से कि ग्रीन रंग का यूजर स्टोरी है, फर्स्ट एक यूजर स्टोरी है, तो आपको पता चलेगा ग्रीन वाले स्टिकर शीटें कहाँ जा रही हैं, पोस्ट इन नोट इस वक्त कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, पता चले जी वो एंड की तरफ जा रहे हैं, ज्यादातर डन हो चुके हैं, कुछ चीजें भी रहती हैं, इसका मतलब ये यूजर स्टोरी कंप्लीट होने वाली है। दूसरी यूजर स्टोरी जो है वो इक्वली स्प्रेड हुई है। इस तरीके के साथ हम बड़ी अच्छी किस्म की एजम्पशन लगा सकते हैं। वो मैं आपको दूंगा जी इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू। तो स्क्रम बोर्ड शुड प्रेफरेबली बी मेंटेन्ड मैनुअली, पेपर पे या व्हाइट बोर्ड ज्यादा प्रेफर्ड है। मगर अब ऐसे तरीके आ गए क्योंकि आपको पता ही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड काम होता है इंटरनेशनली, आप लोग टीम कुछ बंदे इधर बैठे हैं, कुछ अमेरिका बैठे हैं, कुछ कहीं और बैठे हैं, तो उसमें फिर ये तो इलेक्ट्रॉनिकली हम इसको हैंडल कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इसकी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं बहुत सारी, उसके ऊपर ही हम वो पोस्ट इट नोट इलेक्ट्रॉनिकली बना के चला देते हैं। फिर जनाब स्क्रम टीम should change or add to the scrum board as required so that the scrum board provides visual information। मतलब जिस वक्त जो चीज हो उसी वक्त इस पे चढ़ा दी जाए ताकि
बिल्कुल करंट स्टेटस हर वक्त उसके ऊपर रहे। एंड इट इज नॉट ओनली जो चढ़ा रहा है उसके लिए, बल्कि जो और टीम मेंबर्स हैं उनको भी पता चलता रहे कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। हो सकता है काम कोई और कर रहा था वो वाला, लेकिन सबको पता है कि काम कहाँ पहुंच गया है। बाहर से आने जाने वालों को भी पता है काम कहाँ पहुंच गया है, और पूरी प्रोग्रेस आपकी मुकम्मल तौर पे सबके सामने है। इम्पेडिमेंट क्या होता है जी? इम्पेडिमेंट ऐसी हर्डल है या ऐसी हिंड्रेंस है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी रुक रही है। टीम ऐसे मसाइल जो हैं वो स्क्रम मास्टर के सामने रखती है, और स्क्रम मास्टर उनका हल निकालता है। वो मसाइल आपके हल करता है। वो मसाइल अंदरूनी भी हो सकते हैं, बैरूनी भी हो सकते हैं। अंदरूनी होंगे तो वो किसी को, मिसाल के तौर पे एक बंदा दूसरे बंदे को कोई चीज भिजवा नहीं रहा वक्त में, तो वो उसको जाके कोच करेगा, एडवाइस करेगा, काउंसल करेगा, मेंटर करेगा और इंश्योर करेगा। लेकिन आपको पता ही है कि ये सर्वेंट लीडर है, ये किसी को डांट डपट तो कर नहीं सकता। फिर अगर एक्सटर्नल मसला है तो उन लोगों से जाके कोऑर्डिनेट करेगा दूसरे डिपार्टमेंट से या जिधर से भी वो चीज आनी है कि ये चीज हमें क्यों नहीं मिल रही और क्या मसला है, और इंश्योर करेगा कि वो चीजें जिस वक्त टीम को चाहिए। क्योंकि प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी इस वक्त काम है, काम, और हमारी टीम है। टीम की जरूरियात पूरी होनी चाहिए। देखिए ना, इट इज नॉट ओनली के रिसोर्सेज जो काम करने के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको मिले। अब फर्ज करें कि टीम को खाना नहीं मिल रहा, टीम की तो परफॉर्मेंस खराब होगी। तो ये इसका काम है स्क्रम मास्टर का कि वक्त के ऊपर टीम को अगर खाना पहुंचाना है तो वो उनको वक्त पे खाना मिले, उनको मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और भी कोई इम्पेडिमेंट्स हैं तो वो भी ना हो, किसी किस्म का गिला शिकायत टीम की तरफ से ना हो सके। तो ये चीज जनाब, इम्पेडिमेंट्स को रिमूव करना इसका काम है। Examples of external impediments might include software license issues or unnecessary documentation required. बस ये तो रिक्वायरमेंट्स की बात है ना जी। वो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन की है, तो उनको जाके समझाए, उनके साथ बात करे कि जनाब ये स्क्रम का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके अंदर आपको लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। स्क्रम फ्रेमवर्क with its inherent transparency facilitates the swift and easy identification of impediments. Failure to identify or deal with impediments can be very costly. अगर आप इनको नहीं दूर करेंगे तो लाजमी बात है आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपकी सारी एजाइल एफर्ट बिल्कुल वो स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। ये तो हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे बहुत ही हाइपर एक्टिव काम हो। जो चीज हमें यहाँ इस्तेमाल करनी है वो टीम की एक्सपर्टीज है। दिस रेफर्स टू द कलेक्टिव एक्सपर्टीज। जो आपने देखा कि वो बॉल्स वाली एक्सरसाइज के अंदर भी टीम ने कलेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाई, कलेक्टिव एस्टिमेशन की और फिर काम शुरू किया। एग्जैक्टली ये टीम एक्सपर्टीज होती है। हमें एक आदमी की एक्सपर्टीज के ऊपर नहीं रिलाय करना, हमें टीम की ओवरऑल एक्सपर्टीज के ऊपर रिलाय करना है, क्योंकि ये इट इज अ टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज नॉट अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. So it refers to the collective expertise of the Scrum team members to understand the user stories and tasks in the sprint backlog in order to create the final deliverable. So team expertise is used to assess the inputs needed to execute the planned work of the project. काम करने के लिए क्या क्या चाहिए ताकि वो बताया जा सके कि ये चीजें हमें इनपुट अवेलेबल की जाएं. This judgment and expertise are applied to all technical and management aspects of the project during the create deliverable process. Scrum team members have the authority and responsibility to determine the best means for converting the prioritized product backlog items into finished product. ये काम टीम का है. टीम ने फैसला करना है कि हम ये कैसे करेंगे. Without requiring involvement of any stakeholders outside the team. टीम का अंदरूनी मामला है. काम बता दिया गया है. प्रायोरिटाइज बैकलॉग से लेने के बाद से लेके डिलीवरेबल के बनने तक का सारा जो अमल है वो टीम की स्वाबदीद में है. टीम खुद ही उसको प्लान करेगी, खुद ही उसको परफॉर्म करेगी, एवरीथिंग. एडिशनल एक्सपर्टीज अवेलेबल फ्रॉम दी स्क्रम गाइडेंस बॉडी. अगर कहीं आपको कोई मसले मसाइल हैं तो आपकी स्क्रम गाइडेंस बॉडी है, उससे मशवरा लिया जा सकता है. आउटपुट में स्प्रिंट
का डिलीवरेबल जो है वो लाजमी बात है कि एट द एंड ऑफ द डे वो निकलेगा। अ प्रोडक्ट इंक्रीमेंट आर डिलीवरेबल इज कंप्लीटेड, deliverable should possess all features and functions defined in the user story included in the sprint and should have been tested successfully। वो जो हमने कहा था डन क्राइटेरिया, डन और डन से पहले टेस्ट किया था एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और डन क्राइटेरिया, और डन के बाद फिर वो चीज जो है कस्टमर के हवाले करने के लिए तैयार। इसके अलावा आउटपुट में हमारे पास अपडेटेड स्क्रम बोर्ड भी आ जाएगा। जो भी आखिरी सूरत होगी स्क्रम बोर्ड की वो अपडेटेड हालत में वो आ जाएगा और उसको वहीं रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी है आप उसकी तस्वीर खींच लें, ठीक है जी, या अगर आप उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर पे चढ़ा सकते हैं या पेपर पे बना सकते हैं, वैसे बनाना है वैसे बना लें। मगर ये कि हम यहाँ इंसिस्ट नहीं करते कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इतना भी काफी है कि जो कुछ हो रहा है उनके जो बोर्ड वगैरह बने हुए हैं और जो बहुत सारी चीजें होती हैं उन सब की तस्वीरें खींच लें आप एट द एंड ऑफ इट, और आपका रिकॉर्ड आ जाएगा कि ये काम कैसे हुआ और कैसे परफॉर्म हुआ। However, at the end of the sprint, the Scrum board will be reset or wiped off। जब नया स्प्रिंट शुरू होगा तो उसके लिए इसको साफ कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा सब कुछ, और फिर नए सिरे से उसी बोर्ड के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। Significance of implementation in Scrum projects और first process employed called create deliverables। ये है जी आपका पहला प्रोसेस, और इसमें जो मेजर ये आपने देखा अभी हमने बात की, ये 4 चीजें इसके इनपुट में आती हैं जो मैंडेटरी इनपुट्स हैं। स्क्रम की टीम आ गई, प्रेसिडेंट का बैकलॉग आ गया, स्क्रम बोर्ड आ गया और इम्पेडिमेंट लॉग आ गया, ये हमने बातें की हैं अभी। इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, रिलीज प्लानिंग का स्केड्यूल हो सकता है, डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, स्क्रम बोर्ड गाइडेंस बॉडी हो सकती है, उनकी रिकमेंडेशन। टूल्स में वैसे तो हम टीम एक्सपर्टीज इज द ओनली मैंडेटरी टूल, लेकिन आपके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर है इसका तो वो इस्तेमाल कर लें, कोई और डेवलपमेंट टूल है या गाइडेंस बॉडी की तरफ से कोई एक्सपर्टीज है उसको इस्तेमाल कर लें। आउटपुट में हमने स्प्रिंट का डिलीवरेबल देना है, अपडेटेड स्क्रम बोर्ड और अपडेटेड इम्पेडिमेंट लॉग, ये चीजें इधर से आउटपुट में जाएंगी। इसके अलावा जो नॉन मैंडेटरी आइटम्स हैं उनमें कोई अनअप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट हैं, कोई आइडेंटिफाइड रिस्क हैं, मिटिगेटेड रिस्क हैं, अपडेटेड डिपेंडेंसीज हैं, दे आर ऑप्शनल। अगर हैं तो उनको भी आप इसमें ले सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि क्रिएट डिलीवरेबल को क्या क्या मिला। क्रिएट प्रोजेक्ट विजन से ओनर आया था, ये आपको याद ही होगा। आइडेंटिफाई स्क्रम मास्टर एंड स्टेक होल्डर से स्क्रम मास्टर आया था। फॉर्म स्क्रम टीम से स्क्रम टीम आई थी। क्रिएट स्प्रिंट बैकलॉग, ये पिछले चैप्टर में 5वां प्रोसेस था स्प्रिंट बैकलॉग के बनाने का, तो स्प्रिंट बैकलॉग वहां से बन के आया था। और इसके अलावा स्क्रम बोर्ड और बाकी को डॉक्यूमेंटेशन या बोर्ड और इम्पेडिमेंट लॉग वगैरह का फॉर्मेट या जो भी बोर्ड चार्ट चीजें हैं वो हमें फिजिकल चाहिए होंगी, वो हमें हमारा स्क्रम मास्टर अरेंज करके देगा। अब जनाब हमने क्रिएट डिलीवरेबल किया तो हुआ क्या इससे स्प्रिंट का डिलीवरेबल निकला जो कि आगे जाएगा, जो आपका अगला फेज है उसमें जाएगा, ताकि वहां पे उसको वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके और वैलिडेट करवा सके स्प्रिंट को। चीजें तो आपने पूरी कर ली, तो डेमोन्स्ट्रेट करना है और रिव्यू मीटिंग के अंदर आपने उसका एक्सेप्टेंस लेना है। और दूसरा काम ये कि जो इम्पेंडिमेंट लॉग है आपका वो चला जाएगा डेली स्टैंड अप मीटिंग में। डेली स्टैंड अप मीटिंग में जो स्क्रम मास्टर है वो इस इम्पेडिमेंट्स को नोट करेगा और उनको रिमूव कर देगा। फिर आगे जी स्टैंड अप मीटिंग। स्टैंड अप मीटिंग रोजाना 24 घंटे में एक दफा, ठीक है जी। आपका स्प्रिंट है 2 हफ्ते का या 4 हफ्ते का, लेकिन एवरी डे द टीम विल मीट वंस फॉर 10 to 15 minutes and they will answer 3 questions to the scrum master. In this process every day highly focused इसलिए कह रहे हैं कि जनाब काम की बात करो, चाय पानी की कोई बात नहीं होगी, बैठना भी नहीं है, खड़े होकर बात करो। टाइम बॉक्स का मतलब है 10 से 15 मिनट इसका टाइम है, इसके अंदर ही जो बात करनी है करो। Is conducted refer to as a daily stand-up meeting. This is the forum for the Scrum team to update each other on their progress and any impediments they may be facing. ये जनाब आपकी स्क्रम टीम बैठी हुई है, स्क्रम मास्टर दरमियान में खड़ा हुआ है, ये लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं और उसके साथ बात कर रहे हैं और एक एक बंदे को चांस दिया, जैसे पहले आप बोलें। तो आप देख लीजिए 10-15 मिनट है आपके पास,
इसमें आपने किस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक एक 2-2 मिनट एक आदमी को मिलेंगे, वो अपना अपना काम करेंगे, स्क्रम मास्टर इम्पेडिमेंट्स नोट करेगा और कहेगा ठीक है चलें आप अपना काम शुरू करें। Time box meeting is conducted every day called daily stand-up meeting. It is a forum for the Scrum team to update each other. देखें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है क्योंकि सारी टीम खड़ी हुई है और एक एक बंदा बोल रहा है, तो एवरीबॉडी इज बीइंग अपडेटेड कि वो क्या कह रहा है, मैं आज क्या करूंगा, कैसे होगा, क्या होगा। अपडेटेड ईच अदर ऑन देयर प्रोग्रेस एंड जो कोई इम्पेडिमेंट्स वगैरह है दे मे बी फेसिंग, वो फिर मास्टर्स को दूर करेगा। तो इसमें इनपुट में हमें स्क्रम टीम मिलेगी, रेफर टू एज अ डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ टीम और people who are responsible for understanding the business requirements specified by the product owner, estimating user stories, final creation of the project deliverables. तो ये तो होगी आपकी टीम। स्क्रम टीम एंड जो आपको पता ही है, हमने कहा था कि क्रॉस फंक्शनल होती है और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होती है। टीम डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ वर्क टू कमिट टू इन अ स्प्रिंट। जैसे हमने कहा ना कि कितना काम हम कर सकते हैं, वो टीम को पता है। एंड डिटरमिन्स द बेस्ट वे टू परफॉर्म इट। पहली बात कितना काम करना है और कैसे करना है, टीम का फैसला है, बाहर से कोई नहीं फैसला देगा। Scrum team consists of cross-functional team members who carry out all the work involved in creating potentially shippable deliverables, including development, testing, quality assurance वगैरह सब हो जाने के बाद वो handover होगा। Identifying the Scrum team is the responsibility of the product owner, often in consultation with the Scrum Master. आपको याद होगा कि Scrum team को select करने की जिम्मेदारी product owner की थी in consultation with Scrum Master. स्क्रम मास्टर फैसिलिटेटर का रोल, सर्वेंट लीडर का रोल अदा कर रहा है, जो ये इंश्योर करता है कि स्क्रम टीम जो है उसको जो रिसोर्सेज, जो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है वो उसको प्रोवाइड की जाए, उनको इम्पेडिमेंट कोई ना आए। स्क्रम मास्टर उनको गाइड भी करता है, फैसिलिटेट भी करता है और जहां जरूरत पड़ती है उनको पढ़ाई भी कराता है, टीचिंग भी कराता है कि ऐसी प्रैक्टिस ऐसे नहीं होती, स्क्रम की प्रैक्टिस ऐसे करो, टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोजेक्ट। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ फैसिलिटेटर है, ये कोई हाकम नहीं है, ये उनको जबरदस्ती नहीं कह सकता ऐसा करो। बल्कि कुछ किताबें तो ये कहती हैं कि स्क्रम मास्टर की जो लेवल है वो बाकी टीम के एन बराबर है, वो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द टीम मेंबर्स। और कुछ किताबें तो ये भी कहती हैं कि ये टीम अपना काम करने के अलावा अगर टाइम बचता है तो टीम मेंबर के तौर पे काम करेगा। सर एक चीज का मास्टर की सिलेक्शन पे सर, जी सर हमने पहले ये डिस्कस हुआ था कि स्क्रम मास्टर जो है वो टीम का पार्ट होता है, तो अभी ये बात हुई कि वो प्रोडक्ट ओनर उसे शुरू में ही सिलेक्ट कर लेता है, तो सर ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है दोनों चीजों में। हाँ इसमें काइंडली जरा गाइड कीजिए सर। ये मेथोडोलॉजी की बात है, मैं तो एक जनरल कॉन्सेप्ट की आपके साथ बात कर रहा था कि स्क्रम मास्टर की हैसियत क्या है। स्क्रम मास्टर बराबरी लेवल का आदमी है, लेकिन इस बात के ऊपर मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज उसको डिफरेंट तरीके से देखती हैं। अब जैसे स्क्रम वाले ने क्या किया, उसने कहा जी स्क्रम मास्टर को पहले ही एक आला दर्जा दे दिया जाए, थोड़ा हायर स्केल दे दिया जाए, बट एट द सेम टाइम जब आपने उसे कहा कि तुम सर्वेंट लीडर हो तो वो हायर स्केल फैसिलिटेशन का ही है ना। लेकिन मैं सिर्फ ये कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्रम मास्टर की हैसियत एक आम टीम मेंबर के बराबर ही है, भले आप उसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले से ईयर मार्क कर देते हैं। मैंने कहा था कि कुछ ऐसे इदारे होते हैं जहां पे वो स्क्रम मास्टर सर्कुलेट करते रहते हैं। जी ठीक है ना जी सर, वो यही साबित करने के लिए करते हैं कि ये एक बराबर ही है सारे। तो ये बात हो गई। बर्न डाउन चार्ट। अच्छा, बर्न डाउन चार्ट कैसा होता है, मैंने शायद आपको कल बताया था कि नहीं बताया था। ओके, आगे मेरे ख्याल आया है, बना हुआ भी है। बर्न डाउन चार्ट जो है वो ऐसे है कि फर्ज करें ये टाइम है और ये है वर्क रिमेनिंग। टोटल वर्क जो आपने एस्टिमेट किया कितना है, टोटल वर्क एस्टिमेट जो है, टोटल कितना काम है, फर्ज करें इतना काम है टोटल। तो जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो वर्क रिमेनिंग क्या है,
ऑल द वर्क इज रिमेनिंग, देयरफॉर पहला निशान लग गया यहां पर। दूसरे दिन जितना काम हो गया वो टोटल काम से माइनस हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा वो इधर आ जाएगा। तीसरे दिन इधर आ जाएगा। तो ये हम पहले से एक प्लान करके रखते हैं कि हमारा स्केड्यूल के मुताबिक या प्लान के मुताबिक हमारा काम बर्न डाउन चार्ट कैसे जाएगा। तो ये हमने एक लाइन लगा लेते हैं कि जी इस तरीके के साथ हमारा काम होगा। हर दिन के बाद हमारा इतना काम हो चुका होगा, इतना हो चुका होगा, और अल्टीमेटली इतना इतना रिमेनिंग होगा, और जब खत्म होगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन हो रही है? ऑन ग्राउंड जब मैं देखता हूं डेली बेसिस के ऊपर, तो पता ही चलता है कि जब पहला दिन खत्म हुआ तो हमने इतना काम नहीं किया, कम काम किया। तो दरअसल हम यहाँ खड़े थे, दूसरे दिन हम यहाँ खड़े थे, तीसरे दिन हम यहाँ खड़े थे, तो ये तो इधर को चल पड़ा। इसका मतलब है कि ये इस जगह पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, राइट? तो हम जब इसको बिखरता हुआ देखते हैं तो ज्यादा देखते हैं, तो हम थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल। हम कहते हैं नहीं, अगले दिन ये इधर नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इसको नीचे लाओ। फर्ज करें मैं इसके ऊपर एफर्ट की, मैं इसको यहाँ ले आया, अगली दफा मैं यहाँ ले आया, अगले, इसका मतलब ऐसा भी इम्कान पैदा हो गया कि ये शायद जितनी देर में ये काम होना था उससे पहले ही हम कर लें। मतलब ये है कि ये भी मुमकिन है कि सारी यूजर स्टोरीज वक्त से पहले ही कंप्लीट हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि वक्त खत्म हो जाए और अभी सारी यूजर स्टोरीज मुकम्मल ना हुई हो। तो दोनों सूरतों में हमें पहले से पता होता है, डेली बेसिस के ऊपर हमें अंदाजा हो रहा होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम डिले हो जाएंगे, हम पूरा काम कर पाएंगे, या हम जल्दी काम कर लेंगे। अगर आप जल्दी काम कर लें तो फिर आपको पहले से अंदाजा है, आप जाके प्रोडक्ट बैकलॉग से मजीद काम उठा लें उतना जो उस गैप में हो, जो बाकी बचेगा। और अगर आप देख रहे हैं कि आप पूरा काम नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को पूरी कोशिश करेंगे स्पीड अप करने की। लेकिन अगर कोई काम रह जाते हैं, एक या दो काम, तो वो फिर वापस प्रोडक्ट बैकलॉग में जमा हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ हम ज्यादा काम भी कर सकते हैं जो हमने इनिशियल एस्टिमेट किया था। जैसे उसने कहा था ना कि हम 60 बॉल्स करेंगे ट्रांसमिट, तो वो 73 कर दी उन्होंने, ज्यादा कर दिया ना। तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लेकिन ये जब डिटरमिन हो जाएगा, जब हमें टीम की वेलोसिटी का अंदाजा हो जाएगा, जब हम 2-3 स्प्रिंट कंप्लीट कर चुके होंगे, तो हमें फेयरली गुड अंदाजा होगा कि हमारी टीम की क्या कैपेबिलिटी है। शुरू में जब नई टीम आती है तो उसको अपनी कैपेबिलिटीज का इतना ज्यादा अच्छी तरह से एहसास नहीं होता। ओके जी, ये चीज हो गई। अच्छा, बात हम कर रहे थे स्क्रम बर्न डाउन की। इट इज अ ग्राफ दैट डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ वर्क रिमेनिंग इन द ऑनगोइंग स्प्रिंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर अब इस वक्त कितना काम बाकी है, इस वक्त कितना काम बाकी है। तो इनिशियल स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट इज अकम्पनीड बाय अ प्लान्ड बर्न डाउन। मतलब उसके ऊपर हमने एक पहले से जो स्केड्यूल हमने बनाया हुआ है, जो प्लान बनाया हुआ है, उसके मुताबिक हम लाइन लगाते हैं कि इस तरह काम होने का इम्कान है। फिर उसके ऊपर हम प्लॉट करना शुरू करते हैं कि एक्चुअली वर्क रिमेनिंग डेली बेसिस के ऊपर क्या रह रहा है, और उसके हिसाब से हमें ये अंदाजा लगाने में आसानी होती है कि हम काम पूरा कर सकेंगे, ज्यादा कर सकेंगे, कम कर सकेंगे, और उसके हिसाब से फिर हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। This chart shows the progress that has been made by the Scrum team and also allows for the detection of estimates that may have been incorrect. Overestimation, underestimation का पता चल जाता है। If the sprint burn down chart shows that the Scrum team is not on track to finish the task in the sprint on time, the Scrum Master should identify any obstacles or impediments to successfully completion and try to remove them. Scrum Master जो है वो कहेगा क्यों नहीं हो पा रहा भाई, क्या मसला है? तो वो फिर उसे जब मसला बताएंगे, इम्पेडिमेंट बताएंगे, तो वो कहेगा अच्छा मैं इम्पेडिमेंट तुम्हारे रिमूव कर देता हूँ, तुम लोग काम कर लो। तो वो कोशिश यही करेगा कि इम्पेडिमेंट रिमूव हो। अगर नहीं हो सकते या कोई ऐसा मसला होता है तो फिर शायद हम काम कंप्लीट ना कर सकें। और रिलेटेड चार्ट, इसी से मिलता जुलता एक चार्ट जो होता है, जैसे स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट था, ये एक बर्न अप चार्ट है। ये उसका बिल्कुल उल्टा चार्ट है। इसके अंदर शुरू में काम 0 होता है
और जितना जितना होता जाता है हम उसका ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ाते जाते हैं। ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, मगर ये प्रोग्रेस दिखाने का काम करता है। दोनों का पर्पस डिफरेंट है। एक वर्क रिमेनिंग दिखा रहा है और उससे पता चल रहा है कि कितना काम हम कर पाएंगे, और दूसरा हमारी प्रोग्रेस शो कर रहा है। दोनों चार्ट जरूरी हैं। तो जो दूसरा चार्ट है बन अप चार्ट, ये नॉर्मली हम इस किस्म की चीज आम वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बर्न डाउन का रिवाज वहां नहीं है। फिर इम्पेडिमेंट लॉग आ गया। एन इम्पेडिमेंट लॉग इज एनी हिंड्रेंस और हर्डल, जैसे हमने पहले भी बात की थी। इम्पेडिमेंट मस्ट बी आइडेंटिफाइड, रिजॉल्व्ड एंड रिमूव्ड बाय द इफ द टीम इज टू कंटिन्यू वर्किंग इफेक्टिवली। ये स्क्रम मास्टर का काम है कि वो उन इम्पेडिमेंट्स को आइडेंटिफाई करे, रिजॉल्व करे और रिमूव करे, और टीम के लिए जिसे कहते हैं कि ऐसे हालात पैदा करे कि वो ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके। Impediments can be internal to the team, such as inefficient workflow और lack of communication वगैरह, पहले भी हम बात कर चुके हैं। और एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट जो है उनमें सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इश्यूज और ये वो चीजें हो सकती हैं। फिर आप आ जाइए इसके इनपुट्स के ऊपर। Scrum framework with its inherent transparency facilitates the swift and easy identification of impediments. Failure to identify or deal with impediments can be very costly. Impediments should be formally recorded by the Scrum Master in an impediment log and can be discussed during daily stand-up meeting and sprint review meetings. Tools जो हैं, stand-up meeting है हमारी. The daily stand-up meeting is a short daily meeting, time boxed to 15 minutes. Team members assemble to report their progress in the sprint and plan the day's activities. Meeting duration is very short, and all members of the Scrum team are expected to attend. Meeting is not cancelled or delayed, kabhi bhi nahi. If one or more members are not able to attend, होगी stand-up meeting तो होगी, कोई मौजूद है या नहीं है. Discussions between the Scrum Master and the team are between some Scrum team members are encouraged. Such discussions happen after the meeting to ensure that the daily stand-up meeting is short. मतलब हमने मौका फराहम कर दिया, हमने स्टैंड अप मीटिंग कर ली, खत्म हो गई, अब कोई बैठ खड़े हो गए बातें करना चाहते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, जो अपने टाइम के अंदर करते रहें. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑफिस आवर्स. ये जो डेली स्टैंड अप मीटिंग है, ये नॉर्मली या तो हम सर थोड़ी सर को ब्रेक ना कर लें, अब तो नींद आने लगी थोड़ा सा ना, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे. चलिए ठीक है, 10 मिनट ब्रेक कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटफुल. मोस्ट वेलकम जी. Now I'm back. जो लोग बोर हो गए थे उनकी बोरियत खत्म हुई क्या नहीं हुई? फ्रेश सर, फ्रेश. अच्छा. ओके जी, हम कर रहे थे कंडक्ट डेली स्टैंडर्ड के हवाले से. तो वो बात तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पर सारे इकट्ठे होते हैं दिन में एक दफा 10-15 मिनट के लिए, एंड दे आंसर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. एवरी मेंबर हैज टू आंसर दोस क्वेश्चंस, एंड अपने इम्पेडिमेंट्स वगैरह जो हैं वो स्क्रम मास्टर को बता के चले जाते हैं. स्क्रम मास्टर फिर उनको ठीक करता रहता है, और अगले दिन जब वो काम करने के लिए आते हैं तो वो उनकी रिमूव करके रखता है प्रॉब्लम, जिस हद तक मुमकिन हो सके, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो. Discussions between Scrum Master and the team are between some Scrum team members are encouraged. Such discussions happen after the meeting to ensure that the daily stand-up meeting is short. Daily stand-up meeting का एजेंडा बस उतना ही है, वो 2-3 सवाल और इम्पेडिमेंट, दैट्स इट, कहानी खत्म. उसके बाद आप खड़े हुए हैं वहां पर, अब आप आपस में कोई कोऑर्डिनेशन करनी है तो भले कर लें. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो स्क्रम स्टैंड-अप मीटिंग है, इसका टाइम भी ऑफिशियल टाइम के बाहर होता है. मतलब जब आप अपना ऑफिस के टाइम खत्म करके बाहर निकलते हैं, उस वक्त आप स्टैंड अप मीटिंग कर लेते हैं, या सुबह के टाइम 9 बजे अगर ऑफिस शुरू होता है तो 8:45 बजे से 9 बजे तक का टाइम आप स्टैंड अप मीटिंग के लिए रख लेते हैं. तीन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो ये हैं: व्हाट डिड आई कंप्लीट यस्टरडे, या अगर आज ही शाम को स्टैंड अप हो रही है तो व्हाट डिड आई कंप्लीट टुडे, व्हाट विल आई कंप्लीट टुमारो, और जो भी अगला दिन
और मुझे क्या मुश्किलात हैं, मेरे इम्पेडिमेंट्स क्या हैं, अगर हैं तो ऑब्स्टेकल्स इम्पेडिमेंट्स क्या हैं और am I currently facing? By focusing on these three questions, the entire team clear understanding of work status. इसमें इंटरनल होगा ना, तो एक टीम मेंबर जब बताएगा कि मुझे ये मुश्किलात आ रही हैं और वो इंटरनल मसला है दूसरे मेंबर का, वो उधर ही इसको समझ आ जाएगी कि यार ये मेरे पे आ रहा है, तो वहीं कह देगा कि डोंट वरी, कल तक मैं ये मसला हल कर दूंगा तुम्हारा। और अगर एक्सटर्नल है या कोई और अरेंजमेंट का मसला है तो वो स्क्रम मास्टर इंश्योर करेगा। अच्छी बात यह है कि स्क्रम मास्टर के भी नॉलेज में आ गया, इवन इफ इंटरनल मसला भी है तो स्क्रम मास्टर के नॉलेज में आ गया, कल वो खुद आगे इंश्योर करेगा, दूसरे टीम मेंबर से पूछेगा हाँ जी ये आपने इनका मसला इनको हल कर दिया कि नहीं किया। Occasionally other items may be discussed, but this is kept to a minimum in light of the time box nature of the meeting. टाइम ही इतना थोड़ा सा है 10 से 15 मिनट, तो इससे ऊपर आप क्या जाएंगे। आउटपुट इसका ये है जी कि जो भी अपडेटेड स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट है उसकी एक तस्वीर खींचने में, मैं तो ये कहता हूँ रोजाना अपना स्टैंड अप मीटिंग के वक्त वो तस्वीर आप जमा करवा दें। The sprint burn down chart is a graph that depicts the amount of work remaining in the ongoing sprint. The initial sprint burn down chart is accompanied by a planned burn down. The sprint burn down chart should be updated at the end of each day as work is completed. This chart shows the progress that has been made by the Scrum team and also allows for the detection of estimate that may have been incorrect. तो ये आपकी जो ओवर या अंडर एस्टिमेशन को ये जाहिर करता है। If the sprint burn down chart shows that the Scrum team is not on track to finish the task on time, the Scrum Master should identify any obstacles and impediments to successfully completion and try to remove them. फिर बर्न अप चार्ट जैसे मैंने आपको बताया था ये भी होता है और ये प्रोग्रेस को नोट करने के लिए होता है। Unlike burn down chart which shows the amount of work remaining, जो बर्न अप चार्ट है वो जो काम हो चुका है वो बताता है कि अब तक आपका इतना काम हो गया, अब तक इतना काम हो गया, अब तक इतना काम हो गया, तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ चलता है। फिर अपडेटेड इम्पेडिमेंट लॉग है। एन इम्पेडिमेंट इज एनी हिंड्रेंस, ये हम पहले भी डेफिनेशन कर चुके हैं, इसको आइडेंटिफाई और रिजॉल्व करना है। इम्पेडिमेंट्स कैन बी इंटरनल एक्सटर्नल, ये भी बात हम कर चुके हैं। स्क्रम फ्रेमवर्क with its inherent transparency facilitates the swift and easy identification of impediment. Failure to identify or deal with impediments can be very costly. Impediments should be formally recorded by the Scrum Master in an impediment log, और मतलब उसको वो बकायदा अपने पास रजिस्टर करेगा और उनको रिजॉल्व करेगा। Can be discussed during the daily stand-up meetings and sprint review meetings as appropriate. ये जनाब आपके प्रोसेस आ गए हैं। ये वही चार चीजें, स्क्रम टीम, स्क्रम मास्टर, बर्न डाउन चार्ट और इम्पेडिमेंट लॉग, ये आपके मैंडेटरी हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट ओनर और ये वो चीजें कुछ और भी हो सकती हैं। फिर आपके जो टूल्स हैं इसमें स्टैंड अप मीटिंग है और 3 क्वेश्चन उसके, ये 2 आपके टूल्स हैं मेन। इसके अलावा आप चाहें तो वार रूम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी देख सकते हैं। आउटपुट्स में देखें तो हमारे पास बर्न डाउन चार्ट का अपडेटेड वर्जन और इम्पेडिमेंट लॉग का अपडेटेड वर्जन, ये हमारी मैंडेटरी आउटपुट्स हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रम टीम मोटिवेटेड हो जाएगी, अपडेटेड स्क्रम बोर्ड आ जाएगा, अनअप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट, आइडेंटिफाइड रिस्क वगैरह वगैरह, जैसे हमने पहले भी देखा था, ये चीजें आ जाएंगी। तो ये आपका पिक्चर आ गई। और अब आप देखते हैं डेली स्टैंड अप जो हो रही है उसको, ये टीम वाले मेंबर तो यहाँ से मिल रहे हैं और स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट जो है वो उसको क्रिएट स्प्रिंट बैकलॉग से मिल रहा है। ये हम डेली स्टैंड अप की बात करें, और इम्पेडिमेंट लॉग उसको क्रिएट डिलीवरेबल से मिल रहा है। अल्टीमेटली वो क्या बनाएगा, ये जो अपडेटेड स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट और अपडेटेड इम्पेडिमेंट लॉग है इसको वो आर्काइव में जमा करवा देगा। तीसरा और आखिरी प्रोसेस जो इस एरिया का है वो है ग्रूम प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग। ग्रूम प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग जो है ये कॉन्टिन्यूसली, आपको पता ही है कि प्रोडक्ट बैकलॉग जो मेन प्रोजेक्ट का पड़ा हुआ है, ये स्प्रिंट से बाहर की बात है, उसको हम कॉन्टिन्यूसली ग्रूम करते रहते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया झाड़ियों को अब प्रोन करते रहते हैं, ग्रूम करते रहते हैं, तो इस तरह हम इसके भी प्रोडक्ट जो नए एपेक्स और स्टोरीज वगैरह आई हुई हैं उनको भी हम सीधा पतरा करते रहते हैं।
तो a prioritized product backlog review meeting may be held in which any changes or updates to the backlog are discussed and incorporated into the prioritized product backlog as appropriate. इनपुट में हमारे पास वही स्क्रम टीम आ जाती है, prioritized product backlog आ जाता है, product owner develops a prioritized product backlog, contains a जिम्मेदारी तो प्रोडक्ट ओनर की है ना, टीम बेशक उसकी मदद करेगी, contains a prioritized list of business and project requirements written in the form of epics which are high level user stories. वही बात हम पहले पढ़ते हैं, वही सारी स्लाइडें इसने रिपीट कर दी है क्योंकि बात वही रीप्रायोरिटाइज करने की बात है ना, वहां पे रिफाइन एंड प्रायोरिटाइज था, ग्रूम एंड प्रायोरिटाइज है. Based on the three primary factors, we value risk or uncertainty, risk or uncertainty और dependence. उन्हीं तीन चीजों के ऊपर बेस करके कार्रवाई आगे करते हैं. Also refer to as the risk adjusted product backlog. आपको याद होगा ये हमने पहले भी बनाया था, जब हमने पहली दफा जब उसकी रिफाइनमेंट और इम्प्रूवमेंट की थी तो उस वक्त भी हमने ये रिस्क एडजस्टेड प्रोडक्ट बैकलॉग क्रिएट किया था. अभी फिर कर रहे हैं जाके उसी चीज को क्योंकि हम रीप्रायोरिटाइजेशन कर रहे हैं. It includes identified and assessed risk related to project. It also encompasses all approved changes that can be appropriately prioritized in the prioritized product. Primary factors influencing the prioritized product backlog. ये आपका बुनियादी फैक्टर है. प्रायोरिटाइज जो बैकलॉग है ये मेजर इनपुट है इस प्रोसेस के अंदर. इसमें हमने बताया कि प्रायोरिटाइज करने के लिए तीन चीजों का ख्याल रखना है. वैल्यू का, वैल्यू में क्या है जी, प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी है कि इंश्योर करे यूजर स्टोरीज विच प्रोवाइड द हाईएस्ट बिजनेस वैल्यू आर प्रायोरिटाइज हायर. ये बात तो हम जानते हैं. फिर एनेबल द स्क्रम टीम टू डिलीवर मैक्सिमम बिजनेस वैल्यू, मतलब हम ऊपर से वो काम उठाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे वो. फिर रिस्क और अनसर्टेनिटी आ जाती है. टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिकॉज द मोर अनसर्टेनिटी दैट एग्जिस्ट द रिस्कियर द प्रोजेक्ट इज. तो ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है. अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी तो रिस्क बड़ा होगा. और हमने इसमें क्या हाल करना है, इट इज इंपॉर्टेंट द रिस्क एसोसिएटेड विद हाई वैल्यू यूजर स्टोरीज इन द प्रायोरिटाइज्ड प्रोडक्ट बैकलॉग आर गिवन हायर प्रायोरिटी. जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं उनके रिस्कों को हाई प्रायोरिटी देनी लाजमी है. यूजर स्टोरीज carrying a higher level of risk will also require risk mitigation action. When these risk mitigation actions are prioritized against the backlog, the result is a risk adjusted product backlog. Dealing with risk early in the project does not guarantee that the project will be successful, but it does enhance the team's ability to deal with the risk. Dependencies आ जाती हैं. अब ये dependencies वो टास्क वाली नहीं है. अब तो हम प्रोडक्ट बैकलॉग की बात करें, यहाँ तो टास्क है ही नहीं. टास्क तो आपको स्प्रिंट के अंदर मिलता था, वहां पे जो रिस्क मैनेजमेंट हम कर रहे थे वो उसके हवाले से कर रहे थे. यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है ये है यूजर स्टोरी के ऊपर, मतलब फंक्शनैलिटीज जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं. तो ये वो डिपेंडेंसीज हैं, तो उनको कंसिडर किया जाएगा इस प्रायोरिटाइजेशन के अंदर. नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ प्रायोरिटाइज्ड प्रोडक्ट बैकलॉग इन विद नो डिपेंडेंसीज बिटवीन द यूजर स्टोरीज. यूजर स्टोरीज के दरमियान कुछ डिपेंडेंसीज होंगी. अगर मैं क्यू को सीधा करूंगा तो क्यू के आगे जाके फिर कस्टमर सपोर्ट वाले से बात करनी है, उसका इंटरेक्शन जो है वो एक दूसरा इशू होगा, फिर उससे तीसरा इशू होगा. तो लाजमी बात है कि देयर वुड बी मेनी फीचर्स. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिपेंड ऑन अदर फंक्शनल एंड इवन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं कि प्रोडक्ट में ये फंक्शन भी हो, ये भी हो, ये भी हो. और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उसकी क्वालिटी के से रिलेटेड है, मतलब प्रोजेक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड जो काम है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. These dependencies can impact how the user stories in the prioritized product backlog are prioritized. Two of the most common ways to resolve dependencies are either split a single story into multiple parts or combine interdependent stories. अगर बहुत ही ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि मे बी हमने बहुत ज्यादा तोड़ दिया है एक यूजर स्टोरी को, मे बी वी हैव टू कंबाइन देम टुगेदर अगेन. या अगर एक स्टोरी बहुत फैली हुई है तो उसको स्प्लिट करने की जरूरत पड़ सकती है. तो ये दोनों काम किए जा सकते हैं, कंबाइन भी किए जा सकती हैं स्टोरीज और स्प्लिट भी की जा सकती है. फिर जनाब इस बैकलॉग का एस्टिमेट किया जाता है. हाई लेवल एस्टिमेट्स ऑफ एपिक्स are also available in the prioritized product backlog.
एपिक का एक अलग फॉर्मेट है, यूजर स्टोरीज का अलग फॉर्मेट है। एपिक में एक से ज्यादा फंक्शनैलिटीज होती हैं और उसका भी एस्टिमेशन का एक मोटा तरीका है मौजूद। और अगर आप उसकी यूजर स्टोरीज बनाते हैं तो उसकी भी एस्टिमेशन जो है वो आप करें। व्हाट आर द टूल्स एम्प्लॉयड टू कैरी आउट दिस प्रोसेस? टूल्स में क्या आ जाता है जी? व्हाट आर द टूल्स? प्रोटोटाइप बैकलॉग की रिव्यू मीटिंग हम करते हैं, वहां पे सारे लोग बैठते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। वही जैसे हमने ये इसके अंदर भी, स्प्रिंट के अंदर भी मीटिंग करते थे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट ओनर के साथ बैठते हैं और आपका मिशन क्या होता है, रिप्रोटाइज करना, तो वो फिर वो मसले के लिए मीटिंग है। इसकी ड्यूरेशन का टाइम बॉक्स अलग है, हर मीटिंग का टाइम बॉक्स डिफाइंड है। Prioritize product backlog review meeting ensures that the user stories and acceptance criteria are understood. ये दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए, यूजर स्टोरी भी समझ आ जाए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी समझ आ जाए, and written properly by the product owner, reflect the actual stakeholder or customer requirements and priorities. User stories are understood by everyone in the Scrum team. High priority user stories are well defined so that the Scrum team can properly estimate and commit to such user stories. Prioritized product backlog review meetings also ensure that irrelevant user stories are removed. वही बात होगी ना, जो irrelevant है वो लो प्रायोरिटी पे जाएगी और नीचे की तरफ जाएगी। और जैसे वो जो हम 80-20 के रूल से बात करते हैं कि अगर 20% यूजर स्टोरीज करने से 80% वैल्यू मिल गई है, तो बाकी 20% जो वैल्यू है, जो कि 80% एक्टिविटीज या यूजर स्टोरीज में पड़ी हुई है, ये तो सवाल पैदा होता है कि यार इसको करने की जरूरत भी है कि नहीं। कुछ मेथोडोलॉजीज ये कहती हैं कि अगर आपको 80% प्रोडक्टिविटी मिल गई है तो शायद 20% के ऊपर मजीद पैसे सर्व करना अक्लमंदी का फैसला नहीं है, मगर ये डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। आउटपुट में हमारे पास अपडेटेड प्रोटोटाइप बैकलॉग आ जाएगा, may be updated with new user stories, new change requests, new identified risk, updated user stories, or reprioritization of existing user stories. ये चीज आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास इनपुट था वो कोर टीम थी और प्रोटोटाइप बैकलॉग था, ये मेजर मेरा वो था। और मेरा जो टूल है वो इसकी रिव्यू मीटिंग है, और अल्टीमेटली जो आउटपुट है वो अपडेटेड बैकलॉग है। और बाकी जो चीजें हैं वो नॉन मैंडेटरी हैं, वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जनाब टोटल पिक्चर इसकी, और किस तरह ग्रूम प्रोडक्ट बैकलॉग क्या क्या लेता है, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर, स्क्रम टीम, और प्रोडक्ट बैकलॉग, और निकालता क्या है, अपडेट हुआ बैकलॉग, और वो फिर अगली फिर 9.1 को चलाया जाता है। नई यूजर स्टोरीज क्रिएट होगी, नया स्प्रिंट शुरू होगा, वो कार्रवाई उस तरफ को चल सकती है। तीनों प्रोसेसेस को आपस में इंटरेक्शन अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि क्रिएट डिलीवरेबल के लिए मुझे इम्पेडिमेंट लॉग भी चाहिए था, मुझे स्प्रिंट बैकलॉग भी चाहिए था, मुझे स्क्रम बोर्ड भी चाहिए था, ये, और इसके अलावा स्क्रम कोर टीम भी चाहिए थी। ये सब चीजें होंगी तो मैं क्या करूंगा, मैं अपडेटेड स्क्रम बोर्ड भी बना दूंगा, मैं स्प्रिंट के डिलीवरेबल भी निकालूंगा, और इम्पेडिमेंट लॉग भी यहाँ से निकलेगा। ये इम्पेडिमेंट लॉग जाके जमा हो जाएगा कागजात में, स्प्रिंट डिलीवरेबल भी आगे चले जाएंगे, और जो मेरे अगले प्रोसेस को चीज जा रही है वो दैट इज ये जो प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बैकलॉग, उसको बुनियादी तौर पर स्क्रम टीम ही जा रही है और प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बैकलॉग जा रहा है, और उसने उसको काम करना है। तो बुनियादी तौर पे आप ये देख सकते हैं कि क्रिएट डिलीवरेबल से डायरेक्टली कोई चीज ग्रूम प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बैकलॉग को नहीं जा रही, उसको जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो डेली स्टैंड अप मीटिंग है, इसको इम्पेडिमेंट लॉग वगैरह चाहिए होता है, तो इम्पेडिमेंट लॉग इसको मिल रहा है। स्क्रम टीम, स्क्रम मास्टर और स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट, और यहाँ से इम्पेडिमेंट लॉग अपडेट हो रहा है, उधर से भी आ रहा था क्रिएट डिलीवरेबल से, और यहाँ से भी अपडेट हो रहा है, और दोनों अपडेशन जारी हैं, जाके फाइल हो रही हैं। और अपडेटेड स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट जो है वो भी अपडेट हो रहा है जाके। तो ये चीजें जनाब, ये हमारा हो गया इंप्लीमेंट की फेज। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब हमारे पास क्या बाकी बचता है? अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो आफ्टर इंप्लीमेंटेशन वी आर लेफ्ट विथ टू थिंग्स।
एक वो आपका जो रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्ट का फेज रह गया है, और एक जो है वो क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका, रिलीज का। रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्ट है, उसके 3 प्रोसेस हैं और एक प्रोसेस आपका रिलीज का है। और रिलीज जो होता है वो लाजमी बात है, जो रिलीज पॉइंट होता है, जो आपने रिलीज प्लानिंग की है उसके मुताबिक वो रिलीज पॉइंट पे रिलीज कर देगा शिपेबल आइटम, और इस तरह से वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, मैं नया चैप्टर नहीं शुरू करता, मैं आपको जो एक सवाल आया था मैं उसके हवाले से आपको वो चीजें दिखाना चाहता हूँ। लेट मी, वो जो फॉर्मेट्स है ना डिफरेंट उसके, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट मी सी कि वो कहीं इधर मुझे मिल जाए। मीनवाइल अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सर रिजवान बोल रहा हूँ, एक सवाल ऐसे ही मेरे ज़हन में अटका हुआ है जी। मतलब मेरे हिसाब से ये बर्न डाउन और बर्न अप चार्ट बेसिकली एक ही तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 अलग-अलग चार्ट्स बनाने में कोई वैसी चीज है जो मैं शायद मिस कर रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल आप मिस कर रहे हैं। दोनों चीजें, दोनों जो हैं ये अलग अलग चीज शो करते हैं। वो क्या, नहीं सर, देखें एक में ये है कि कितना काम बाकी रह गया है, उससे भी यही पता चलता है कि मेरी प्रोग्रेस क्या है। एग्जैक्टली, प्रोग्रेस नहीं पता चलता। अगर आप जरा गौर करें, जो बर्न अप चार्ट है वो प्रोग्रेस बताता है कितना काम हो गया है। ठीक है जी। तो हम असल में फॉरवर्ड प्लानिंग करने के लिए हम इस चीज को देखते हैं कि अच्छा अब मुझे अपना पेस क्या करना है, स्लो करना है, तेज करना है। ये जो बर्न डाउन चार्ट है ये आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेडिशनल में नहीं होता। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हम टाइम बॉक्स हैं, इसका रिलेशन टाइम बॉक्स के साथ है। इस टाइम बॉक्स के अंदर हम जो हमने कमिटेड यूजर स्टोरीज हैं वो कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो हम नहीं देखते ना हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ये बर्न डाउन चार्ट हमें ये बताता है कि हम वो सारे काम, वो सारी यूजर स्टोरीज कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मे बी कुछ फैसिलिटेशन की रिक्वायरमेंट हो, कोई स्क्रम मास्टर कोई मतलब इम्पेडिमेंट दूर करे, कोई ऐसा माहौल तैयार करे कि हम इस चीज को कंप्रेस करके उसके अंदर कंप्लीट कर सकें। और अगर नहीं मुमकिन है तो हमें पहले से पता होगा, हम पहले से इन्फॉर्म कर देंगे कि जनाब ये 2 यूजर स्टोरीज तो शायद हमसे मुकम्मल ना हो सके। तो ट्रांसपेरेंटली व्हाइल द प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन, पीपल ऑलरेडी नो कि यार ये 2 यूजर स्टोरीज नहीं कंप्लीट कर पाएंगे आखिरी वाली। सिमिलरली अगर हम ज्यादा अच्छा पेस पकड़ लिया है, अगर हमने से कि ओवर एस्टिमेशन पहले कर ली थी और सॉरी अंडर एस्टिमेशन कर ली थी, और अब हमें पता चल रहा है कि नहीं यार ये तो काम हम तेजी से कर रहे हैं, ये तो 2 हफ्ते का काम हमने 1 हफ्ते में कर लिया है, तो फिर इसका मतलब है हमें पहले हफ्ते के दौरान ही अंदाजा हो जाएगा कि हम अब और मजीद कितना काम प्रोडक्ट बैकलॉग से उठा के लाएं। तो दौरान इस स्प्रिंट के ही हम जाएंगे वापस और प्रोडक्ट बैकलॉग से दोबारा ग्रूमिंग करके मजीद काम उठा के ले आएंगे जो इसी स्प्रिंट में मुकम्मल करेंगे। मतलब ये है कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये होता है कि एक टाइमलाइन होती है, हमें एक टास्क होता है कि ये टास्क हमने करना है 10 दिन में। अब वो टास्क अगर 8 दिन में हो जाए तो हम चूंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, 8 दिन में काम हो गया है, हम कहते हैं किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, 2 दिन आराम करो। वो 2 दिन भी हम खा जाते हैं, वो हम प्रोजेक्ट मैनेजर को वापस नहीं करते कि जी बचत हो गई है 2 दिन की, तो वो उसको किसी फायदे में इस्तेमाल कर ले। तो जब मैं कुछ टाइम बचाता हूं तो मैं किसी को बताता नहीं हूं, और जब मैं टाइम लेट हो जाता हूं किसी चीज में तो उसका सारा मैं बर्डन डाल देता हूं प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर कि जी वो ये तो हो नहीं सका, मुझे और टाइम दें, ये करें वो करें। तो मतलब ये है कि ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में इस चीज काम को जल्दी करने का तो कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, और लेट करने की हर पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बर्न डाउन चार्ट आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप काम ज्यादा कितना कर पाएंगे या कम कितना कर पाएंगे टाइम बॉक्स के अंदर। ठीक हो गया। एक सर चीज जरा काइंडली और क्लियर कर दें, ये बर्न डाउन चार्ट जब बनता है और उससे ये जाहिर होता है जी कि हम अभी अपना जो नॉर्मल हमारा प्लान ट्रैक था उससे लेट हो रहे हैं, तो
कोई ऐसा कोई रूल ऑफ थंब मौजूद है कि वो जो स्क्रम मास्टर है वो कब इंटरवीन करना शुरू करेगा, यानी 20% टाइम के बाद, 50% टाइम के बाद, कि भाई तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं तुम मीट कर पा रहे, या वो डे सेकंड से ही ये इंटरवेंशन स्टार्ट कर देगा? सर स्क्रम मास्टर कभी इंटरवीन नहीं कर सकता, उसका कोई काम ही नहीं है इंटरवीन करने का। स्क्रम टीम सर वो जो इम्पेडिमेंट्स उसने देखने हैं कि ये प्रोग्रेस ठीक नहीं हो रही, तो सर उनसे पूछना है कि क्या इश्यूज हैं आपके। उसने कुछ नहीं देखना, उसको हमने बताना है, उसको हमने बताना है कि हमें काम करने में यहाँ यहाँ डिफिकल्टी आ रही है, बराए मेहरबानी हमारे ये मसाइल हल करो। वो फिर हमारी सर्विस करेगा, हमारी एज अ सर्वेंट लीडरशिप वो हमारे लिए वो रास्ते हमवार करेगा। उसका कोई काम नहीं बनता कि वो खुद पूछता फिरे क्यों भाई तूने काम क्यों नहीं किया, तुम तेज काम करो, तुम आस्था काम करो, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि टीम जो है वो मजाज है कि उसने क्या करना है, अगर उसे मदद की जरूरत है। मेरा असल में जो मैं कहना चाह रहा था वो कुछ इस तरह से है कि स्क्रम मास्टर देख रहा है कि कंटिन्यूसली या काफी सारा टाइम गुजर गया है और वो जो गैप है हमारे प्लान में और जो एक्चुअल हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है, तभी भी वो किसी पॉइंट पे इंटरवीन नहीं करेगा अगर टीम उसको नहीं बताती। तो फॉर एग्जांपल टीम नहीं बताती तो नहीं इंटरवीन करेगा, उसका काम ही नहीं बनता। हाँ वो ये कर सकता है कि वो उनको कोच कर सकता है, वो उनको ट्रेन कर सकता है, वो उनको काउंसिल कर सकता है कि भाई ये आप इस बात पे भी जरा अटेंशन दें, ये क्या हो रहा है, तो ये ये उनको उनके साथ डिस्कशन कर सकता है, लेकिन वो उनको हुक्म नहीं दे सकता कि तुम कल तक ये काम मुझे करके दिखाओ, ऐसा नहीं कर सकता। वो उनको रिमाइंड करा सकता है, गपशप लगा सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, और ये टीम को जाग के रहना चाहिए। ये टीम का फर्ज है कि अपना काम एहसन तरीके के साथ करें और अपने मसाइल उसको बताएं। मसाइल उन्होंने खुद रिजॉल्व नहीं करने, उसके लिए वो बैठा हुआ है, मसाइल वो उसके सामने ही रखेंगे। अच्छा जी, एक मिनट, ये क्या हो गया? मेरी वो फाइल एक नहीं मिल रही है, मैं उसको एक जगह थी, मैंने वो दूसरी क्लास को दिखाया भी था, वो सारे के जी क्या फॉर्मेट्स हैं, क्या वो पर्सोनास क्या होते हैं, सारा कुछ। अभी मैं एक मिनट देखता हूँ, अगर मुझे कहीं मिल जाए। और कोई क्वेश्चन है बीच में तो बताइए जी, मैं उतनी देर ढूंढ रहा हूँ, आप बातचीत हम कर सकते हैं। ये जो एग्जाम है ना जी फंडामेंटल का, ये आप लोग अगली क्लास से पहले इसको करके आइए। अभी हमारी कल क्लास है कि नहीं है? आज ही है ना बस, कल हुई थी क्लास और आज है, अब अगले हफ्ते होंगी क्लासेस, ऐसा ही है। जी सर, मगर अगले हफ्ते उसमें फ्राइडे को तो छुट्टी है सर। किस बात की? 14 अगस्त। 14 अगस्त जी। अच्छा छठिया करो, 14 अगस्त क्या है, ट्रेनिंग करेंगे। नहीं तो ये क्लास आगे चली जाएगी। वैसे मुझे एतराज तो कोई नहीं है, हम इसको 21 को भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर अगले हफ्ते पे चली जाएगी क्लास। क्या कहते हैं, बता दें मुझे। 14 अगस्त को आपने इस टाइम पे कौन सा झंडा चढ़ाना है? अगर कहते हैं तो मैं इसको 21 पे शिफ्ट कर दूंगा, अदरवाइज मेरा तो ख्याल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 को क्लास कर लेते हैं। हाँ क्लास अटेंड हो सकती है सर, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, तो
मैंने सारा मटेरियल आप लोगों का इकट्ठा करके एक जगह रखा था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, मटेरियल सारा किया हुआ है ना। ओके, एजाइल पीएम, एक और फाइल में चेक करता हूँ, उसको देखता हूँ शायद उसमें कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे खतरा है कि उसमें भी शायद ना मिले। ठीक है, ठीक है। ये एक नजर देख लीजिए, मैं आपको ये अभी शो करता हूँ। ये प्रेजेंटेशन उसमें मौजूद है ना, जो चीजें मैंने आपको दी हुई हैं उसमें ये प्रेजेंटेशन मौजूद, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मेरा ख्याल है ये प्रेजेंटेशन ना हुई तो मैं ढूंढ के दे दूंगा आप। नहीं सर, जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिली इसके अंदर अभी तक। अरे हमारा पासवर्ड कब तक आ जाएगा? नहीं अभी तक। क्यों जी, अभी तक नहीं आया? तो सर पासवर्ड तो नहीं मिला ना अभी तक। ये बर्न डाउन और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये स्प्रिंट बैकलॉग है, ये बर्न डाउन चार्ट है, बर्न डाउन वेलोसिटी बनी हुई है। ये चार्ट आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा, ये वाला। आपको नजर आया जी स्क्रीन पे? ये देखिए, ये बर्न डाउन चार्ट है, ये डे वाइज बने हुए हैं, ये 23 दिन दिखाए हुए हैं। और ये जनाब उसने ये बर्न डाउन, ये रेड लाइन जो है ये आइडियल बर्न डाउन है कि जी टोटल काम इतना था और इस स्पीड से आखिर तक जाएगा। और ये जो ब्लू लाइन लगी हुई है, डार्क ब्लू लाइन, ये रिमेनिंग एफर्ट को शो कर रही है। और जो लाइट ब्लू लाइन है वो रिमेनिंग टास्क को शो कर रही है। और जो टास्क कंप्लीट हो गए हैं वो नीचे नजर आ रहे हैं। क्या बहुत से तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के, ये बड़ा अच्छा इसने तरीका बनाया हुआ है। इसमें इसने दो तीन चीजें शो कर दी हैं, एफर्ट भी शो कर दी है, रिमेनिंग टास्क भी शो कर दी हैं, और कंप्लीटेड टास्क भी शो कर दी। तो दैट इज मच बेटर। सो दिस इज कॉल्ड द बर्न डाउन चार्ट। तो इस तरह का कोई फॉर्मेट आप एक चूज करेंगे। ओके, ये भी काम हमारा नहीं बना। अच्छा जी, स्क्रम टेम्पलेट्स, ये थी वो प्रेजेंटेशन जो मैं ढूंढ रहा था। सर पासवर्ड अभी तक नहीं आया। नहीं, वो नहीं आया अभी तक, मैं कर रहा हूँ उसको। आई एम ट्राइंग टू गेट इट। मिल गई है मुझे फाइल। ओके सर। हम्म
अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन बनी है ये बड़ी मजेदार है। ये मतलब दिस विल शो यू ऑल दी फॉर्मेट्स एंड वो सब तरीकाकार आपने खुल के आ जाता है। ये जी मैंने एक अलग प्रेजेंटेशन बनाई थी पर्सोनाज, एपेक्स, यूजर स्टोरीज के हवाले से कि ये क्या है, फॉर्मेट किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, ये वो सब चीजें इस प्रेजेंटेशन के अंदर हैं। ये आगे जी पर्सोनाज, इसमें वो ये कह रहा है जी पर्सोना जो है वो आपको बताता है हु, कौन लोग हैं, स्टेक होल्डर कौन है ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस पर्सन, व्हाट मेक्स देम टिक। हर बंदे का एक आपने करेक्टर बनाना है और उस करेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है उसके हिसाब से। फिर इस बंदे को आपने एक प्रॉब्लम सिनेरियो में डाल देना है। वो प्रॉब्लम सिनेरियो हमारी यूजर स्टोरी को जन्म देगा। वो प्रॉब्लम सिनेरियो जो है वो बताएगा कि क्या करना है, और फिर हम अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन डालते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और हमारी यूजर स्टोरी बताती है कि हमारा पिवट क्या है। और वो वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए व्हाट इफ द कस्टमर डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंट्स हो, तो वो शो करती है यूजर स्टोरी। उससे ये सारा साइकिल आप इधर जाते हैं, पर्सोना, प्रॉब्लम सिनेरियो, वैल्यू, कस्टमर डिस्कवरी, कस्टमर से डिस्कशन करने के बाद, इनपुट लेने के बाद फिर कहीं जाके यूजर स्टोरी फॉर्म होती है। और ये यूजर स्टोरी को आप रिफाइन करते रहते हैं, इस चक्कर में घुमाते रहते हैं अनटिल आपको यूजर स्टोरी फाइनल हो जाती है, उसको प्रोडक्ट बैकलॉग में डाल देते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद हमारा अगला काम शुरू हो जाता है। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, यही फ्लो करते हैं। ये जनाब आपको एपिक्स, यूजर स्टोरीज और टेस्ट केसेस बताने की कोशिश की गई है। एपिक एक लंबी कहानी है, एक किस्सा है। ये जो तीर बने हुए हैं, तीन ऊपर नीचे, ये तीनों तीन एपिक्स को शो कर रहे हैं, जिसमें हर एपिक जो है वो एक से ज्यादा फंक्शनैलिटी को एड्रेस कर रहा है। उसको तोड़ने की जरूरत है यूजर स्टोरीज में। तो उसने क्या किया, उसको तीन यूजर स्टोरीज में बांट दिया, और उस यूजर स्टोरी के अंदर उसके टेस्ट केसेस लगे हुए हैं कि जनाब ये फंक्शनैलिटी इसकी, इसका ये टेस्ट है या इसका ये चेक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इज इंक्लूडेड इन इट विद इन द यूजर स्टोरी। वो मीट होगा तो वो यूजर स्टोरी सक्सेसफुल होगी। और अल्टीमेटली जब ये सारी जो एपिक हैं अमल हो जाएंगी तो आपकी स्टोरीज रेडी हो जाएंगी, इंप्लीमेंट हो जाएंगी। अच्छा, फिर आपको इस तरह से देखें, ये आइटरेशंस हैं। ये देखिएगा, ये एपिक है। फर्स्ट आइटरेशन में हमने एक एपिक उठाई, उसकी स्टोरीज, तीन स्टोरीज उसकी थी, वो हमने हैंडल की। दूसरे के अंदर एक ज्यादा भी हो सकती हैं स्टोरीज, तो वो ये दूसरा एपिक है। तो एपिक वाइज भी हम कोशिश कर सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा एपिक्स को हम एक आइटरेशन में ले लें, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। हम यूजर स्टोरी वाइज भी चल सकते हैं, मगर दिस इज अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। बट अ नंबर ऑफ आइटरेशंस, 2, 4, 5, 6, 12 आइटरेशंस को हम कहेंगे ये इतने तक काम हो जाएगा तो एक रिलीज कहलाएगा। तो एपिक्स के अंदर स्टोरीज, स्टोरीज के अंदर टेस्ट केसेस, और फिर यूजर स्टोरीज जो हैं वो कुछ यूजर स्टोरीज मिलके एक आइटरेशन बनाती हैं, और कुछ आइटरेशंस मिलके एक रिलीज बनाती हैं, और कुछ रिलीजेस मिलके आपकी अल्टीमेट जो फाइनल रिलीज है, जो प्रोडक्ट की फाइनल डिलीवरी है, वो बनाती है। तो ये आइटरेशन की प्रायोरिटी और वो सारा हिसाब किताब उसमें आ गया। ये प्रायोरिटी के हिसाब से लगी हुई ये चीजें। फिर अब आगे आ जाए प्रॉब्लम और पर्सोना और प्रॉब्लम सिनेरियो। Make sure the stories are tied to personas and problem scenarios you have validated in the real world. Then discuss to make sure your implementers have a vivid picture. If you never hear anyone say, I just built what you said, then you are doing well. मतलब ये है कि आप कोई नया काम कर रहे हैं, कोई यूनिक काम कर रहे हैं, तब ठीक है। अगर कोई कहता है कि ये तो हम कर चुके हैं पहले, तो इसका मतलब है कि वो यूनिक सिनेरियो नहीं है। तो पर्सोना प्रॉब्लम सिनेरियो मिलाएंगे, और उसके बाद फिर हम उसको कंफर्म करेंगे कि ये जनाब वाकई इसका यूजर स्टोरी बनती है कि नहीं बनती है, और अल्टीमेटली यूजर स्टोरी या एपिक बनती है, तो उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। अच्छा जी, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पे वो शुरू में कहते हैं आई थिंक आई हैव ऑब्जर्व्ड अ प्रॉब्लम नीड वी कैन सॉल्व फॉर
द कस्टमर। नेक्स्ट में कहता है आई हैव क्रिएटेड ऑसम स्टोरी टू फ्लैश आउट द बिग पिक्चर। तीसरे में कहता है व्हाट इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल फर्स्ट टेक दैट विल अलाउ अस टू वैलिडेट द वैल्यू। आप ये देखते हैं कि हर पॉइंट के साथ वो चीजें वैलिडेट होती जाती हैं और ज्यादा फोकस्ड होता चला जा रहा है। चौथे में कहता है हाउ विल वी नो इट इफ इट इज रेलेवेंट टू द कस्टमर। कस्टमर से कंफर्म करना पड़ेगा। डिड दे केयर एनफ वेयर वी वांट टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट। फिर वापस हम 6A पे जा रहे हैं। नो वी विल रिवाइज और स्क्रैप इट, दोबारा नए सिरे से शुरू करें। और जब ये चीज वैलिडेट हो जाती है तो फिर हम कहते हैं यस वी विल कंटिन्यू टू लेयर इन द रेस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑन अ सक्सेस बेसिस। तो ये इस थॉट प्रोसेस से हमें चलना होगा। प्रॉब्लम क्या है उसको समझना, उसके हिसाब से स्टोरीज बनाना। ये आपके सामने एक एपिक रखी हुई है। एपिक क्या है जी? किस्सा क्या? किस्सा एज अ पर्सन, पर्सोना, मिस्टर एक्स कह लीजिए या मिस वाई कह लीजिए, जो भी है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग सो दैट आई कैन डिराइव अ बेनिफिट। मतलब ये फॉर्मेट है। एज ए मिस्टर एक्स आई वॉन्ट डिफाइन करेंगे क्या करना सो दैट क्या फायदा लेना चाहते हैं। स्टोरी का फॉर्मेट है। इस तरह की 2-3 यूजर स्टोरीज मिलके एक एपिक बनाती हैं। प्रोसेस ऑफ स्टोरी बोर्डिंग, ये जो अभी आपको दिखाया, ये जो कार्टून और कैरेक्टर वहां शो करके, और जैसे वो नहीं होती उसके अंदर क्या कार्टून होती है अखबारों के अंदर, उस तरह से अपने एपिक को या जो स्टोरीज को शो करना, इसको कहते हैं स्टोरी बोर्डिंग। ये भी एक टूल है, ये भी एक टूल है स्टोरी बोर्डिंग, और इसमें चीजें ज्यादा हो जाती हैं। तो प्रोसेस ऑफ स्टोरी बोर्डिंग विल हेल्प यू टेस्ट द डेप्थ एंड स्कोप your understanding about the persona and the problem scenario. Stimulate interest and discussion in the story with your implementation and peers on the product side. Push you to think through the detail so you have implementers don't have to start from scratch there. Persona है मिसाल के तौर पे फ्रैंक द फंक्शनल मैनेजर, ये एक कैरेक्टर है। फ्रैंक क्या चाहता है? फ्रैंक wants to assess one of his teams so he can plan a skill development program. फ्रैंक एक आदमी को अपनी एक टीम को असेस करना चाहता है ताकि उसकी बेस के ऊपर वो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप कर सके। ये है जी इस पर्सोना और उसकी रिक्वायरमेंट। आप इसके एग्जांपल एपिक्स देखिए कि इस कहानी के एपिक्स क्या बनते हैं। एक एपिक ये बनता है, ये अभी आप गौर सुनिए, ये एग्जांपल जो आपने मांगी है ये वो है। एज द एचआर मैनेजर आई वांट टू क्रिएट अ स्क्रीनिंग क्विज सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वेदर आई वांट टू सेंड पॉसिबल रिक्रूट्स टू द फंक्शनल मैनेजर। मतलब आप एचआर मैनेजर हैं, आपको फ्रैंक ने ये रिक्वायरमेंट दे दी है और अब इस रिक्वायरमेंट के लिए आप अपने एपिक्स बना रहे हैं। तो पहला एपिक ये है कि आप एचआर मैनेजर हैं, आप भी एक पर्सोना है, ठीक है जी, एचआर मैनेजर, और आप क्या चाह रहे हैं? एक स्क्रीनिंग क्विज बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करें और उन लोगों को फिर फंक्शनल मैनेजर के पास भेजें कि जाओ जाके टेस्ट लो। दूसरा एपिक है कि एज ए एचआर मैनेजर आई वांट टू ट्राई आउट द स्क्रीनिंग क्विज। मतलब वो स्क्रीनिंग क्विज तो मैं बनाऊं, क्रिएट तो मैं करूं, मैं उस क्रिएट करने के बाद मैं उसको ट्राई भी करके देखना चाहता हूं so that I can make sure if it works as I expected and that I'm ready to both give it to candidate and share the result with the functional manager। दोनों काम। पहले मेरा फोकस था कि क्रिएट करना स्क्रीनिंग क्विज को, ये एक एपिक है। दूसरा एपिक है कि उस स्क्रीनिंग क्विज को टेस्ट करना। तीसरा एपिक है as a HR manager I want to give the screening quiz to job candidate so I can assess their skill sets against the needs of the position। पहले मैंने स्क्रीन क्विज बनाया, दूसरे में उसको टेस्ट किया, तीसरे में उसको मैं क्या कहते हैं, उसको एक्चुअली दे रहा हूं, उस स्क्रीन क्विज का एग्जाम ले रहा हूं, उस बंदे का टेस्ट ले रहा हूं। चौथे में मैंने एज ए एचआर मैनेजर आई वांट टू शेयर एंड एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ आवर स्क्रीनिंग विद द फंक्शनल मैनेजर
so they can decide who they want to interview। ठीक हो गया जी। अब ये आप देखिए कि फ्रैंक की ये रिक्वायरमेंट थी, क्या थी? असेस वन ऑफ हिज टीम्स, एक टीम को वो असेस करना चाहता है ताकि ही कैन प्लान अ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसने ये रिक्वायरमेंट एचआर मैनेजर को दे दी। एचआर मैनेजर ने ये 4 एपिक्स बनाए। अभी इन एपिक्स में से यूजर स्टोरीज निकली, ये देखिएगा स्टोरी बोर्डिंग की हमने इस एजाइल एपिक की। जरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए और इसको गौर कीजिए क्या हो रहा है जी। विद द हेल्प ऑफ द एनेबल क्विज विजर्ड, हेलन डिफाइंस टॉपिक्स फॉर हर कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग क्विज। अभी वो स्क्रीनिंग क्विज क्रिएट कर रही है। अब उसको क्रिएट करने के अंदर क्या क्या सवाल सोचने पड़ रहे हैं। What questions do I need for this skill quiz? I'll need to quickly X2 check these with Frank। X2 का पता नहीं क्या मतलब ये quickly, ओहो डबल चेक। अच्छा चलें, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये क्विज बनाने के लिए ये एपिक था क्विज बनाने के लिए ये 2 यूजर स्टोरीज तो इसमें से निकल आएंगी। ये 2 या हो सकता है 2 से भी ज्यादा हो। एक क्या क्वेश्चन डालें और दूसरा फ्रैंक के साथ भी इसको चेक करना है। फिर है अब अगला आ गया, फ्रैंक नीड्स टू मेक श्योर द क्विज टॉपिक्स हेलन सिलेक्टेड आर रेलेवेंट फॉर हिज ओपन पोजीशन। उस सिलसिले में हेलन नीड्स फीडबैक ऑन द टॉपिक ऑफ दिस क्विज। हाउ कैन आई गेट दैट बैक टू हर इन 2 minutes बिफोर माय नेक्स्ट मीटिंग। ये वो फ्रैंक सोच रहा है। अच्छा जी, अब जनाब हेलन क्या कर रही है, एनेबल क्विज चार्जेस ऑन द नंबर ऑफ टॉपिक बैंक्स यू यूज एंड हेलन हैज टू अपग्रेड। वो कहती है लेट्स सी, सो आई गेस आई नीड टू बाय मोर क्विज बैंक्स एक्सेट्रा। कि ये जो क्विज बैंक है जिसमें से मैं एग्जाम बना रही हूँ ये काफी नहीं है, हो सकता है मुझे और रिक्वायरमेंट के हिसाब से और क्विज बैंक में ऐड करने पड़े। ये एक और मसला आ गया। हर एक चीज एक नई रिक्वायरमेंट है, एक नई स्पेसिफिकेशन है, एक नई फंक्शनैलिटी है। Frank, the function manager, has some specialty questions he wants Helen to add to the quiz। ये मजीद जनाब एक और प्रॉब्लम आ गया। फंक्शनल वो फ्रैंक अपने कुछ क्वेश्चन डलवाना चाहता है। अब ये हेलन सोच रही है फ्रैंक wants to add some of his own questions now। अब वो पेपर बना रही है, उसने बैंक भी कहीं से खरीद लिया, कुछ और भी कर लिया। वो कहती है अब ये इसके क्वेश्चन में कहाँ बीच में डालूं और कैसे डालूं, एक और मसला। फिर जी द क्विज इज रेडी, तैयार हो गया जी क्विज। Helen uses it to screen a job candidate। We would get a sense of where you are in on a few key skills। अब जनाब वो जिसका क्विज लिया उसको वो बता रही है कि जी ये तुम्हारा टेस्ट होगा, इसके बाद हम तुम्हारे कुछ की स्किल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये एक यूजर स्टोरी बन जाएगी। फिर हेलन नीड्स टू सेंड द रिजल्ट्स ओवर टू फ्रैंक विद हर कमेंट्री। अब ये जो कुछ हुआ है इसका रिजल्ट उधर भेजेगी। अब ये देखें ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये सारे एपिक्स और एपिक्स के अंदर की यूजर स्टोरीज सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हेलन अभी जनाब वो क्या कर रही है, टाइम टू गेट दीज रिजल्ट्स टू फ्रैंक सो ही कैन डिसाइड हु टू इंटरव्यू एंड अंडरस्टैंड देयर स्किल सेट। तो इस पूरी स्टोरी बोर्डिंग के अंदर फ्रैंक की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट थी वो कवर हो गई है, लेकिन इसके अंदर देयर आर अ नंबर ऑफ एपिक्स एंड अ नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज। अभी हम उनको मजीद देखते हैं और मजीद खोलते हैं। मिसाल के तौर ये बोर्ड, ये स्टोरी बोर्डिंग का ना तरीका एक अलग है। अब वो जो एक जो डायग्राम था उसको लेता जाएगा और उसका एपिक बनाता जाएगा। वो कहते हैं जी ये वाला जो पहला डायग्राम था, विद द हेल्प ऑफ द एनेबल क्विज विजार्ड हेलन डिफाइंस टॉपिक्स फॉर हर कैंडिडेट स्क्रीन क्विज। इसको रखें सामने और अब जनाब इसके नोट्स में वो लिख रही है, दिस एपिक assumes हेलन द HR मैनेजर and her company have already signed up for the enable quiz service to screen job candidates। Helen's first goal is to set up a quiz to screen candidate। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर मौजूद था, क्वेश्चन बैंक ऑर्डर किया जा चुका है, अब वो उस क्वेश्चन बैंक में से अपना क्विज बना रही है ताकि स्क्रीन किए जा सकें
जॉब के लिए कैंडिडेट्स। Helen's first goal is to set up a quiz to screen candidates for a new engineering position Frank, the functional manager, has opened. The idea with the system is Helen can do more or her own to screen candidates. So she wants to take the initiative and set up this initial screening quiz. This first step covers 2 stories. अब देखिएगा इस epic को उसने कैसे तोड़ा। Number 1, as an HR manager, I want to browse the banks of available quiz questions, matching them with the skill sets described in an open job recruitment so that I can draft a screening quiz with relevant questions. एक ये स्टोरी हो गई इसमें से। दूसरी, as an HR manager, I want to check the quiz topics if I've selected with Frank, the functional manager, so that I can make sure I have the right topics. तो आपने ये देखा कि ये एपिक खुलना शुरू हो गए। इसी तरह आप ये आगे अगले को पढ़ें, उससे अगले को पढ़ें, तो ये स्टोरी बोर्ड के थ्रू उसने एपिक्स और एपिक्स के अंदर यूजर स्टोरीज बनाई और अल्टीमेटली जो एज अ होल ये अब एपिक और उसकी यूजर स्टोरीज आपके सामने है। एपिक था एचआर मैनेजर आई वांट टू क्रिएट अ स्क्रीनिंग क्विज, इसका पहली यूजर स्टोरी है एज अ मैनेजर आई वांट टू ब्राउज, दूसरी यूजर स्टोरी है आई वांट टू मैच एन ओपन पोजीशन, ये जो हमने अभी बनाई है। और इन दोनों की ये जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखिएगा जरा, इसके टेस्ट केसेस क्या होंगे, कैसे ये चेक होगा कि ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है कि नहीं हुई है। रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैंने एग्जिस्टिंग क्विजेस को देखना है और आई हैव इन प्लेस एंड फिगर आउट इफ आई कैन रीयूज इट। नंबर 1, मेक श्योर इट्स पॉसिबल टू सर्च बाय क्विज नेम, मेक श्योर इट्स पॉसिबल टू सर्च बाय क्विज टॉपिक, मेक श्योर इट्स पॉसिबल टू सर्च बाय क्रिएशन एंड लास्ट यूज डेट। ये 3 काम अगर हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये स्टोरी पूरी हुई। फिर दूसरा, हर यूजर स्टोरी के कोई टेस्ट केसेस होंगे, हर यूजर स्टोरी के कोई टेस्ट केसेस होंगे। एपिक है, एपिक के अंदर यूजर स्टोरीज हैं, हर यूजर स्टोरी के एक या एक से ज्यादा टेस्ट केसेस मौजूद हैं। फिर ये वही वाला है ना, हाँ वही वाला है। ये उसकी तीसरी स्टोरी है, एज ए HR मैनेजर आई वांट टू सेंड अ ड्राफ्ट क्विज टू द फंक्शनल मैनेजर so I make sure I have covered the right topics on the screening quiz, और ये उसके टेस्ट केसेस बने हुए हैं। फिर ये चौथा आ गया एज अ फंक्शनल मैनेजर, अब ये फंक्शनल मैनेजर आ गया, ये फ्रैंक है। I want to send feedback on the screening quiz to the HR manager so I make sure I am getting the best possible screening on candidates, ये उसके टेस्ट केसेस हैं। फिर एज HR मैनेजर आई नीड टू परचेज एन अपग्रेडेड सर्विस टियर सो आई कैन ऐड एडिशनल टॉपिक्स टू माय क्विज, ये उसके टेस्ट केसेस हैं। तो आप ये देखें, ये स्टोरीज के साथ साथ उसके क्विज के साथ कुछ चीज बनती जा रही है। खैर ये कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ शो की, मैंने आपको सारे वो जो एपिक्स थे मैं दिखाता हूँ आपको। ये 4 एपिक्स थे ना, वी वर्कड ओनली ऑन वन एपिक। एक पे किया है हमने कि दूसरे 2 पे किया है, मुझे देखने दें। क्रिएट है, वहां 1 पे किया हमने। जो 4 एपिक थे बनाए हमने, उन 4 एपिक्स में से एक एपिक को खोला है अभी आपने और उसमें से 5-6 स्टोरीज निकाल ली हैं। तो अब आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हुआ होगा कि एपिक और स्टोरीज क्या हैं, एपिक क्या है, टेस्ट केस क्या है, वो किसी हद तक आपको अंदाजा हुआ होगा। मैं अभी आगे आता हूं, आगे और आगे नहीं, बस इतना ही है। एक और जगह मेरे पास कुछ फॉर्मेट्स भी पड़े हुए हैं, मैं वो भी देखता हूं अगर वो निकल आए। यूजर स्टोरी टेम्पलेट, ये है जी यूजर स्टोरी। अरे काइंडली वन ड्राइव पर शेयर कर दीजिएगा। जी बोलिए। सर ये काइंडली वन ड्राइव पर शेयर कर दीजिएगा। ये हुआ है। मैंने कहा सर ये काइंडली वन ड्राइव पर शेयर कर दीजिएगा। सर ये है वहां पर, ये सब कुछ हुआ है। हाँ ये पहले से मौजूद है ये सब चीज वन ड्राइव पर। जी ये एक प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, ये इसमें भी वही उसी तरह से चीजें बताएंगे। ये वही एपिक है, इंट्रोडक्शन टू यूजर स्टोरीज। ये देखिए यूजर स्टोरी कार्ड,
यूजर स्टोरी कार्ड इस तरह से बनाया जा सकता है, एक मतलब एक कार्ड है जिसके ऊपर वो जो वही लंबी सी स्टोरी लिखी हुई है, नीचे उसके प्रायोरिटी और एस्टिमेट लिखते हैं आप, उसको प्रायोरिटी और एस्टिमेट 1 से 10 के स्केल पे दे दें, कैसे भी कर लें, हमने तो अंदाजा लगाना है ना। ये है एपिक, एपिक का नहीं सॉरी यूजर स्टोरी का कार्ड है। इसको आप इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं। फिर आप और क्या कर सकते हैं, ये प्रायोरिटाइज हुआ है, ये प्रायोरिटाइजेशन देखिएगा, हाई प्रायोरिटी ऊपर है, लो प्रायोरिटी नीचे है, और ये जो एक एक लाइन नजर आ रही है, ईच आइटरेशन इंप्लीमेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी वर्क आइटम। सर ये डिस्प्ले नहीं आ रहा जी। जो सर्कल्स हैं, ईच न्यू वर्क आइटम इज प्रायोरिटाइज्ड एंड एडेड टू द स्टैक, ये रीप्रायोरिटाइज डिस्प्ले नहीं। सोहेल साहब ब्लैंक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन। ओ सॉरी सॉरी, ये मैंने शेयर नहीं किया, आई एम सॉरी। अब आया जी नजर कुछ? ये नजर आ रही है ये जो एक यूजर, ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है ये इसके ऊपर है जी, एपेक्स एंड यूजर स्टोरीज के ऊपर। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा तफसील से समझ आ जाएगा। ये उसने पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि जी ये यूजर स्टोरी का यूजर स्टोरी का नंबर दिया, यूजर स्टोरी का वो लिख दिया उसने जो भी यूजर स्टोरी है, और उसका फॉर्मेट भी बनाया जा सकता है, जैसे मैंने कहा था एज इफ करके, और उसके नीचे प्रायोरिटी और उसका एस्टिमेट दे दिया। मिसाल के तौर पे एज अ स्टूडेंट आई वांट टू, अब ये फॉर्मेट बना लेना, एज अ डैश आई वांट टू डैश एज इफ, उससे क्या बेनिफिट होना है वो। तो 3 चीजें आपने बतानी है कि मैं पर्सोना कौन हूं, नंबर 2 मैं क्या करना चाहता हूं, और नंबर 3 उससे बेनिफिट क्या होगा। ये 3 एलिमेंट्स जरूरी हैं किसी यूजर स्टोरी के लिए। कौन, पर्सोना कौन है, क्या करना चाहता है, और उससे बेनिफिट क्या होगा। इन तीनों चीजों को मिला के आपकी एक स्टेटमेंट बनती है। इसको इस यूजर स्टोरी को एक नंबर दे देंगे आप, इसको एक प्रायोरिटी दे देंगे, इसको एक एस्टिमेट दे देंगे, और ये जिस वक्त हम ग्रूमिंग कर रहे होते हैं या रिफाइनिंग कर रहे होते हैं उस वक्त ये बाकी डाटा उसमें भरा जाता है। और यूजर स्टोरी भी वही बनती है ना। ये रीप्रायोरिटाइजेशन का प्रोसेस है कि कोई यूजर, ये पूरा हमारा स्टैक लगा हुआ है प्रोडक्ट बैकलॉग का, और इस प्रोडक्ट बैकलॉग के स्टैक में से नई चीजें ऐड हो रही हैं, पुरानी कोई निकल रही हैं, चेंजेस की जा रही हैं, ऊपर हाई प्रायोरिटी है, नीचे लो प्रायोरिटी है, इस तरीके के साथ। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यूजर स्टोरी थ्रू आउट द एजाइल लाइफ साइकिल। इसमें क्या हो रहा है, एजाइल लाइफ साइकिल है, फर्ज करें कॉन्सेप्ट है, इंसेप्शन है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांजिशन है और प्रोडक्शन है। इसमें जनाब एनविजन हुआ, गेट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यहाँ पे आपने वो सारे प्रोडक्ट बैकलॉग की स्टोरीज वगैरह बनाई, टू डू लिस्ट में, फिर आपने जनाब उसमें चेंज रिक्वेस्टें बीच में ऐड हो रही हैं, रिलीज आ जाती है, वो सर्कल चलती रहती हैं चीजें, इस तरीके के साथ आप इसको कंप्लीशन की तरफ पहुंचाते हैं। अच्छा, कार्ड जो आप यूजर स्टोरी का बनाए उसकी दोनों साइडों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर साइड के ऊपर यूजर स्टोरी लिखें, उसकी प्रायोरिटी एस्टिमेट वगैरह लिखें, उसका सीरियल नंबर लिखें, बैक साइड के ऊपर उसके टेस्ट केसेस लिख दें। कैसे कंफर्म होगा, वो जो टेस्ट केसेस जैसे आपको मैंने पहले दिखाए थे, वो टेस्ट केसेस उसकी बैक साइड पे लिख दें। तो अब ये कार्ड तैयार है जनाब, इसके मुताबिक काम करना है। फिर ये जनाब ये देखें, वही जो मैंने ऐसे बताया, ये फॉर्मेट बनाया हुआ है उसने। ये है जी फ्रंट ऑफ द कार्ड, एज ए पर्सोना आई वांट टू डू क्या, यहां लिख दें, सो दैट जो बेनिफिट है वो यहां लिख दें, बस। इधर प्रायोरिटी, इधर उसका साइज या जिसको वो एस्टिमेट कहते हैं, और इधर इसका सीरियल नंबर, दैट्स इट। बैक साइड पे इसके चले जाएं, ये इसकी बैक साइड है, इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आप बताएं कि क्या कंडीशन होगी, गिवन कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हेन कौन सा इवेंट अक्कर करे तो हम उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दे सकते हैं, भले आप इसको टेक्स्ट में लिख दें, एक क्राइटेरिया, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, या आप इस तरीके के साथ लिख दें, मगर इसका भी फॉर्मेट बनाया जा सकता है, गिवन दिस
व्हेन दिस हैपेंस देन डू दिस। तो ये फॉर्मेट से जरा काम आसान हो जाता है। अगर इस तरह के कार्ड हमने बना के रखे हुए हों तो हम इनको भरते जाएं और अपने स्टैक में रखते जाएं और उनको प्रायोरिटाइज करते जाएं। यहाँ पे हमें क्या दिखाया जा रहा है, ये एक टू डू लिस्ट है यूजर स्टोरीज की। यहाँ पे अब ये वही है अपना जो स्क्रम बोर्ड था, उसी स्क्रम बोर्ड को एक रिफाइंड फॉर्म में इन्होंने बनाया है। किस तरीके के साथ बनाया है, इन्होंने इस साइट पर उसको टाइटल दे दिया, थीम दे दिया, प्रोडक्ट ओनर का नाम दे दिया, डेडलाइन दे दी और डिस्क्रिप्शन दे दी, एफर्ट पॉइंट्स, वैल्यू पॉइंट्स और स्कोर। और इसके हिसाब से अब ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पोस्टेड नोट लगाए थे, उसने पोस्टेड नोट लगाने के बजाय यहाँ पे लिख दिया पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, आप पोस्टेड नोट लगा लें। तो ये जनाब 3 खाने इसने बनाए हैं, आप 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। तो ये अगर आपने टेस्ट वाला कॉलम रखना है तो इधर आप पहले रखेंगे टू डू, आप इन प्रोसेस, उसके बाद आप रखेंगे टेस्ट और फिर डन। और अगर आप कैनबैन को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा और 1-2 कॉलम उसमें और ऐड हो जाता है। उसमें वो दरमियान में भी एक रखता है, 5वां कॉलम रखता है। ये पूरा बैकलॉग एक तरफ, बैकलॉग के बाद फिर उन बैकलॉग में से कुछ चीजें वेटिंग लाइन में क्यू में लगा के रख देता है, उनमें से कुछ चीजों को वर्क इन प्रोग्रेस में ले जाता है और फिर उनका टेस्टिंग होती है, फिर उनकी एक्सेप्टेंस होती है। तो ये मुख्तलिफ जो मेथोडोलॉजीज हैं और मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, उसमें इसका डिजाइन थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। ओके, इस तरह से आप इनको प्रिंट कर लें और फॉर्मेट बना के और इसके कार्ड्स बना लें, उनको काट लें और उनको इस्तेमाल करें। ये भी प्रेजेंटेशन वहां मौजूद है, और ना हो तो मुझे बताइए, मैंने सब चीजें रखी हैं वहां। ये पूरा फोल्डर मैंने रखा हुआ है वहां पर। अगर कोई चीज इसमें से ना हो तो मुझे आप इन्फॉर्म कीजिए ताकि मैं उसको रिफ्रेश कर दूं। जी जनाब, मेरी तरफ से आज का काम खत्म हो गया। अब आप लोग बताइए, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? जी जनाब, एनीवन? ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया आज की डोज? अगली क्लास में हम आखिरी 2 फेजेस दोनों कवर कर लेंगे। 4 प्रोसेस है टोटल, 3 एक में, एक में, वो करेंगे। और फिर एक अगले लेक्चर में कुछ थोड़ा सा वो जो और चीजें स्केलिंग पढ़ेंगे, थोड़ी सी, थोड़ा सा वो एक और आइटम है, वो उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। जी जनाब, कुछ कह रहे थे? चलें जी, टाइम हो गया, लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच। रिजवान सर, थैंक यू सर, खुदा हाफिज। ओके सर, थैंक यू, खुदा हाफिज। थैंक यू।